screen if you want anything. Can we start the session now? Yeah, you can. Good evening, all. We're already 46 now. Yeah, you can. Yeah, we have gathered here to understand how we can trade international currencies, because there is a very good opportunity in the international currencies. So if we understand it and if we trade it sensibly, your returns will be extraordinary as compared to the Indian currencies. Now, if you see, there are approximately 29 international cross currencies where one can trade. And here we have only 4 currencies that we can trade, plus some cross currencies, but that is available only from your 9 o'clock to 5 o'clock. But whereas in these international currencies, it is live from Monday to Friday, 24/7. So we get more opportunities and we can trade it in a sensible way. Also, the trade that we can do there is in 3 types. One is a micro lot, where your account size that you will be trading will be 0.01. And then one is a mini lot, where you will be trading 0.1. And then there is a mega lot where you will be trading one big lot. So to start with, we should always try with the micro lot, where we understand what is how the things are going on. And once we are satisfied, then we will be gradually shifting to the mini and then big lot. So I have prepared an Excel which gives us the calls when we have to buy or when we have to sell. It is based on the Bollinger Bands and the mean and standard deviation. We have used Bollinger Band in a different way, wherein we have changed the days from 22 to 25 to 25/3 and 25/4. Similarly, for resistance also it is same, 25/2, 25/3 and 25/4. Here we calculate the values with the help of mean and standard deviation. And whenever a script goes below S2, we can enter a trade. And whenever it comes to S2, S3, we can average it if we are in a loss. And if it goes to S4, we can again average it, so that our average becomes very low. We will be averaging at 0.01, 0.02 and 0.04. So basically our average price will be near S4 itself. So the moment there is a bounce back, we can book our profit. We can book our profit in one go, or we can book our profit in 4 lots, 4 micro lots, then 2 micro lots, and then last 1 micro lot. I have been using this live demo account for the past 12 days, and it has showed a very significant return. And that is the reason why I have asked Kothari ji to give me an opportunity to present it before you, so that you can understand it. And if you are feeling that it is good, then you can start trading. First with a demo account and then with a live account. First get confirmation using for 2 to 3 months. And if you are confirmed that it is working fine, then you can shift to a live account. The minimum amount that you require for a currency trading is $200. And gradually you can increase the amount as and when you are confident. So here you can see that in this calls, this scripts gets filtered. Wherever there is a signal, the scripts get filtered. So I can focus on these 7 to 8 stocks only. I can focus on this and I can place the order. Now, if you see, from whenever the price goes above this level, this script will automatically go from here. So you know that if the script is removed from here, that means you are not in a loss. You are either in a small profit or very small loss. So once the script is removed, that is confirmed that you will be getting a profit in that script. So this is how it is being in 25 days, 124 days and 256 days. Here you can see that there is no entries as of now. It will pop up whenever that signal is attained. Now coming to this market, how is the market, how we trade the market? Now suppose I have a position here. I have 4 open positions. This lot is giving me a profit of $1.54.
Now, this is GBP CAD. So if I look into this order, I can book whenever I get $2, I book my profit. The logic behind this is that I have 4 lots and it is blocking only $10 as a margin. So whenever I get $2 or $2.50, I book my profit and come out. My intention is to earn $10 to $12 in a day, not more than that. If I'm getting $10 to $12 a day, I'm satisfied. So my margin basic looking is I should get $10 to $12 a day. So whenever I get to $2.50, I book my profit. If you want to book your profit, you just click here, it gets closed on. And if you want to add, you can use this way. Either you can use new order, a pop window will be pop up. Generally select pending order, then you can select the buying price. Don't place market price. Always go for 10 to 20, 30 pips down and then place an order. So that by that way, your risk is reduced. So I have generally seen that you can see here, I'm always seeing some losses initially. So I would request everyone not to enter immediately whenever a call is populated. Keep a difference of 10 pips or 20 pips or 30 pips so that whenever that trade gets executed, you will not go into maximum losses. Here I have seen a loss of up to 20 rupees in approximately 5 to 6 stocks whenever it is in an open position. So we have to see these things. What is the margin requirement and what is the profit that we want? The moment I get $2, I will close this position. When I get $2, I will close this position. If I'm not in profit, I will continue to hold the position. And whenever I get a profit, I exit from this. The other way around is that if you want to place a market order, you can directly select this. This is the lot size that you want. You can increase it or you can decrease it as per your wish. And if you want to directly market price, if you want to trade, you just click buy here or sell here, the trade will happen. But it is recommended that don't go for market orders, go for limit orders. Limit order can be placed by clicking here, new order, and then you select pending orders. And these are the spreads. Generally, what is the spread between two levels is shown here. Here they don't charge you commission if you're trading on a spread. That means that there will be difference in the buying and sell, bid and sell price. Suppose if you're paying brokerage, then the spread will not be charged. The difference is that when there is volatility, here the spread increases. So during volatility, your brokerage or commission, which is inbuilt in it, will increase. Then there is an other issue here. If you carry forward a day's position, there are swap charges for it. 0.01, 0.02, depending upon the script. So if you carry forward any position, the next day you can see that swap charges has been added to your account. So whatever profit you make minus swap charges will be your net profit. So these are the three things that we have to understand. And if you see here also symbols, if you go for symbols, these are Forex measures. There are 6 Forex measures and Forex miners are 29 scripts. So these are the items that I have added here. So I can add or I can remove any script as per mile. If I untick this, it will go off. If I again tick it, it will come on. So I can either remove it or add any new script. Here only I am looking into currencies. That is why I'm not looking into the other. Here you have cryptos and everything is there, but I'm looking only focusing on my currencies, international currencies. Here you don't get Indian INR, that USD INR or Euro INR, but you're only getting these foreign currencies here. You can add any of the scripts. You can remove any of the scripts. For opening a chart, you just have to click chart window. A new chart will pop up. Then you will click zooming. And now it is a line chart. You can click this. It will get a candle chart. Again, you can zoom it to your level. Now the green line shows that this is where I have placed my order. So it is very clear that this particular script, GBP GAD, Euro and GPY. See, this trade has not been executed for me because see, you can see here, it is a limit order of 0.01. I have placed a limit order, but the script did not come to this level. That is the reason why it did not get traded.
you can see this order in the pending list. Euro JPY. I have placed an order at 128.66, but it had not traded. So I always place a limit order instead of a market order, so that whatever loss I'm seeing, that is absorbed. Even after that, sometimes some scripts give you losses, but it's not an issue. Tomorrow it will go up and we can cover the losses. It's not a problem that you have to book your losses, because if I get some loss, I can even average it by doubling the quantity. But for that, it needs to go below my second level. Then only I will average it. It should go here. Then only I will average it. If it goes here, I will again average it. So this is how we are trading this particular international currencies. And this is how we place the orders. Now, if you see, I have been trading from 10th of February. On any day, I have not made any losses in any of my transaction. The only loss that I have made is on the first day when my friend showed how to book, how to place an order and how to close an order. That is the only place where I have made a loss. Otherwise, I always made profit. And if you see, I have never crossed my 0.01 level. If I have averaged it, then only I have come to 0.02. Otherwise, I have never breached that 0 point. This is the first thing that we have to understand in international market. Even if you are getting a high leverage, we should only trade with our limitations. Only 0.01. And if we need to average, then you can use 0.02. Otherwise, don't exceed that limit. Once you exceed that limit, everything goes haywire. So make it a rule that you will never exceed this limit. And if you see, the basic thing is that suppose I have an account, then my account if my capital grows, then I can increase my quantity. Till my capital grows, I should never increase my quantity. So this is the first rule that we have to understand: increasing the quantity. How to increase the quantity? Now, suppose here I am trading with 0.1. If this goes up, I can do it by 0.02. Here I can increase it by 3 times, 0.03, 0.04, and so on. So we are not crossing our limits, that we have taken a very huge risk and the market is going against us. That issue will not happen. So similarly, here you will double the quantity when you are going to average it. So be very clear that if you start with $200, you will only increase the capital allocation if your fund is now $400. When it goes to $600, you can increase to 0.03. When it goes to 800, 0.04. So this condition should be always maintained. If you break this condition, then it can create a problem. Now, basically, how we open an account. Now, the opening of an account is that this is the icmarket.com site where you can open a free demo account. If you click here, they ask you for your country of residence, name, email ID, phone number. And if you register, you will get a username and password. But always be clear that you are opening a demo account and not a live account. Once you are completed with it, you will get a password, username and password, and a demo name, which is your demo. Here it is very specific. See, demo account 03. So this we have to be very specific when we open the account. Once we open the account, we can add these scripts and then we can trade. But always refer this Excel for placing your trade. Never just see a script and trade. Whenever you see a call, you can trade. Now we have already taken this call. Now, if you go for JPY, now you have to go CHF JPY. Now you will open a new order. Now the current price is 125. So what I would do is that I will go for pending order and I need to buy, since it is here in this section. No, sorry, it is in CHF JPY sell. So I will be selling this.
So I should select here sell limit, and then I should increase this price by few pips. I will not be entering the market immediately. I will be increasing my few pips, and then I will be placing my order. Because I don't want to enter immediately. If the market goes up, then I'm ready to trade. 675, and I'm placing an order. So if I place an order, I get this order. It has been placed. Now, when this rate comes, it will get executed. So I don't have to sit in front of the system and confirm it whether the trade has executed or not. So I'll just place an order and leave it. So this is how we trade in this particular currency. And the beauty of this is that if you keep a system, you will never face a loss. You may have to roll it over for, see, you can see your swap ratios. These, they have shown it because I have carried forward this position. So they have a specific rate for each particular SIP. So as per that, they will charge you the swap ratio. Some is 0.04, some is 0.03, some is 0.02. It depends what is the swap ratio. Totally, I have given a swap of 66 paisa. The profit earned is 113 minus 0.66, that is 112. And these are my open positions. And these are my positions where I have placed an order and the order has not been executed. So this is how we get a, in general, trade report of all the scripts that we have entered. You are getting a leverage of 1:500, but that doesn't mean that we play with a huge quantity and then we have some loss in that. So it's better to play with safe and in a systematic manner. I'm open to questions, if any, so that if anyone has a doubt, it can be cleared here. Sir, good evening. Even Yeah. for macro lot, 200 USD required. Huh? Even for micro lot, 200 USD required. See, when you fund an account, they are asking for $200 in this particular thing. You don't require. Your maximum margin required is $10 to $12 for the open positions. Right. If you see this account, you're only utilizing $10. But I have calculating that even if you give $200 and if you get $10 per day, it amounts to approximately $200 return in a month. Yes, sir. So my condition is that I will only focus on getting $10 per day. Yes, sir. So if I For get 5 $200 days of $2, it is $10. For the $200 demo account, we are not required to give any money right now. No, we don't have to give any money. So it will be the free. I'm not required to deposit any money there. No. Only when I go when for you a live go open trading. a real account, then it is required. Then also it will be only $200. No, it's not necessary. See, one of our group member has opened an account with 3,000 rupees. 3,000, but you are telling 200 minimum dollar. In here, it is showing minimum $200. So then it is 200 required. That means. Sir, that's what I'm saying. But he has opened in OctaFX. Acha, he has opened somewhere else. Okay. Yeah. Okay. Achha, There achha, he achha. has deposited 3,000 rupees. But here is a minimum 200 required. Yeah, they are saying 200 minimum requirement because the Okay. options they are showing is 200. Okay. It is for a demo account or if it's a live account, because when we open a live account, then only we will come to know. Demo account, they are showing minimum $200. Okay. हेलो Yeah. सर yes ये प्लेटफॉर्म इज द डिफरेंट सर वो ऑक्टावेक्स जो अकाउंट है वो डिफरेंट है और ये जो प्लेटफॉर्म है ये डिफरेंट है हाँ दोनों वो डिफरेंट ही है सर. दोनों डिफरेंट है. हाँ. और मैंने भी पहले ये वाला जो है वो चार्ट मेरे को याद आ रहा है ये 2010 में मैंने डाला था. ये मेटा ट्रेडर का चार्ट दिखता है. हाँ, मेटा ट्रेडर 4 का है ये. हाँ ये 4 का है. तो उस टाइम पे भी वो प्रैक्टिस करने के लिए भी दे रहा था इस टाइप का. हाँ. तो आजकल वो लेकिन इसमें हमें यही देखना है $2 अगर मेरा मार्जिन है तो $2 मिलते ही मैं एग्जिट कर लूं. मुझे ज्यादा नहीं चाहिए. 10 पिप 15 पिप 16 पिप मिला, मेरा $2 मिला, मैं निकल जाऊंगा. $2 का मतलब क्या है आपका? $2 मतलब आपका 150 रुपया. नहीं, एक ट्रेड आपने डाला. हाँ. एक ट्रेड में आपका कितना रिस्क है? रिस्क सर देखिए, अभी नेगेटिव जाएगा तो ये डॉलर दिखाएगा ही ना रिस्क. लेकिन मैं क्लोज नहीं करता हूं क्योंकि इसमें अगर आप देखेंगे सबसे पहले अगर आप इसमें देखेंगे ना तो सबसे ब्यूटी इसका है कि आपका जो पॉइंट्स है बहुत नजदीक है सपोर्ट.
क्योंकि इसका टोटल 1-1.5 रुपया ये ना, तो इसका स्टैंडर्ड डिविएशन भी बहुत छोटा रहता है। Okay. मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन छोटा रहता है। आपको केयरफुल होना है ये बड़े बड़े वाले में, 90 वाले में, 125 में, 130 में, यहाँ पे आपका बड़ा है डिफरेंस। यहाँ पे आपको थोड़ा सा M2M ज्यादा दिखेगा ये पर्टिकुलर क्वांटिटी इसमें, बाकी ये छोटे छोटे वाले में आपको ज्यादा M2M दिखेगा नहीं। नहीं बराबर है, मैं ये बोल रहा हूँ कि कितना मैक्सिमम रिस्क हो सकता है, जैसे आपने कोई मैक्सिमम ट्रेड रिस्क डाला। देखिए, मैंने तो यहाँ पे कोई स्टॉप लॉस लगाया नहीं है, हाँ और मैंने आज तक $20 का लॉस, मतलब ये M2M $20 देखा है मैक्स टू मैक्स 6-7 लॉट में। जैसे अभी और मेरे पास maximum 4 profit लॉट कितना ओपन है? है। मैक्सिमम प्रॉफिट कितना आया है? मेरा प्रॉफिट में $8 आया है एक ट्रेड में। एक ट्रेड में मतलब नहीं समझ में नहीं, एक ट्रेड कितना उसका वो है, एक ट्रेड यानी कि क्या है वो, व्हाट इज वन ट्रेड, वो समझ में नहीं आ रहा है। वन ट्रेड का मतलब क्या? जैसे अभी मैं यहाँ पे निफ्टी आपको 85 सेंट मिल रहा है सर, हाँ ये प्रॉफिट दिखा रहा है ना 85 सेंट, हाँ ये आपका नहीं प्रॉफिट नहीं है। नहीं, मैं बोल रहा हूँ जैसे आपने ये क्या बोलते हैं, ये यूरो यूएसडी का कौन सा है इसके अंदर? USD और ये सिंगापुर डॉलर। हाँ, तो आपने अगर यूएसडी का एक एक लिया, इसका क्या मतलब है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट वन यूनिट? 0.01 सर। तो आपने माइक्रो यूनिट। $0.01 का आपने एक लॉट खरीदा, हाँ, और वो लॉट में कितने डॉलर है इसमें? वो उतना डिटेल में मैं गया हूं नहीं हूँ सर, क्योंकि नहीं इसका नहीं, अब इतने जैसे यहाँ क्रॉस पे करेंसी है अपना, ना, नहीं वहां जैसे पे अपने तो यहाँ, अपने पास आइडिया आता है ना सर, अपने पास NSE में मालूम है 100,000 का है। हाँ हाँ, यहाँ कितने का है? इसमें क्या है, यहाँ पे इतना हम डिटेल में, क्योंकि सब क्रॉस करेंसी है, हर चीज का अलग अलग होगा, वो डिटेल में अभी मैं गया नहीं हूँ। अच्छा ओके। ये अच्छा, कितने जो का, आपने, मैं ये देख रहा हूँ कि मेरे को 0.01 में $2 का मार्जिन लगता है और $2 का प्रॉफिट का पोटेंशियल है। अच्छा अच्छा, मैं आपने ये क्या बताया, यहाँ पे क्रिप्टो भी है क्या? क्रिप्टो भी है, लेकिन मैं क्रिप्टो कभी ट्राई नहीं किया है। नहीं, बट क्रिप्टो भी है, अगर किसी को क्रिप्टो लेना तो वो भी ले सर सकता है ये इसमें वाले प्लेटफॉर्म हाँ, पे। अच्छा क्रिप्टो भी होगा, इसमें भी होगा, डाउ जोन्स फ्यूचर होगा, सब ये होगा देखिए ये क्रिप्टो मेरे में हिसाब ये से, सब है। अच्छा, सब होगा सर। तो साहू जी आपके लिए तो बढ़िया है, आप तो क्रिप्टो के बड़े फैन हैं, आप क्रिप्टो ले सकते हैं नहीं यहाँ नहीं से। वो सर, नहीं नहीं वो जो ट्रेडिंग व्यू चार्ट प्लेटफॉर्म ना, ये पहले मैं ये जितने भी ये इंटरनेशनल करेंसी था, ये हाँ। पहले ये चार्ट प्लेटफॉर्म मैं यूज करता था। अब जब से ये ट्रेडिंग व्यू आ गया है, वो मेटा स्टॉक, अमी ब्रोकर, ये सब छोड़ दिया हूँ। अच्छा वहां पे सब कुछ मिल जाता है। बात ये डेमो के लिए ये एक्सलेंट प्लेटफॉर्म है जहाँ तो पे, आप, और ये जो आप बात कर रहे हैं ना, यूरो यूएसडी, ये काफी ज्यादा फ्लक्चुएट होते हैं। जो पीताम्बर सर जी ने बोल रहे हैं कि $2 लेनी है, बस उतना ही लेनी है, वो काफी फ्लक्चुएट होता है। तो दैट डज नॉट मीन कि उसमें सबसे ज्यादा वोलेटिलिटी होगा, ऐसा नहीं है। वोलेटिलिटी मतलब एक 50% करेक्शन, 40% काइंड ऑफ करेक्शन, उस टाइप के नहीं मिलेगा, बट वो फ्लक्चुएशन होता है कंपेयर टू आपका, अगर आप यूएसडी आईएनआर देखोगे ना, उससे हाँ। ज्यादा ये फ्लक्चुएट होता है। मतलब आपको दिखेगा कि यार $2, $3, $4, $5 प्रॉफिट मिला है, एकदम से -5 हो जाएगा, मतलब वो अच्छा चीज है। हाँ, इसमें वो जो आप कह रहे हैं मैंने क्या किया है, इसमें टारगेट डाल के छोड़ दिया है सर। बस 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 बस। देखिए यहाँ पे मैंने टारगेट डाल के छोड़ दिया है, जो भी मेरे को ट्रेड करना है ना, ये मैंने टारगेट डाल के छोड़ दिया, यहाँ टारगेट डाल के छोड़ दिया है। तो इसमें टारगेट और स्टॉप लॉस का प्रोविजन है, मतलब एक साथ डाल सकते हो हाँ आप? सब है, लेकिन हाँ, स्टॉप लॉस सब मैं है, लेता सब। नहीं हूँ। अच्छा, बट आप डाल सकते हो, चाहो तो आप डाल हाँ ये सकते है हो। ना, अभी आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस डालना है, आप इसको क्लिक करोगे तो यहाँ स्टॉप लॉस डाल सकते हो, आप कितना पॉइंट चाहिए आपको। और ये ऑर्डर आपका एक दिन के वैलिड रहता है या नहीं आपको नहीं, एवरीडे कंटिन्यू ऑर्डर? होगा, हाँ, कंटिन्यू होगा। वो रहेगा रहेगा रहेगा। अच्छा, ये उसमें ये आपका, आपको स्वैप चार्जेस लगाएगा वो ये स्वेप चार्जेस क्या चीज है? वो व्हाट इज स्वेप चार्ज? नेक्स्ट डे के लिए आप रोल ओवर करते हो ना, तो हाँ, उसका स्वैप चार्जेस लेता है। किसी अकाउंट में 0.02 है, किसी में 0.04 है। नहीं, ये आप कह रहे हैं मान लो आज एक ऑर्डर लगा हुआ है और ये हाँ आज तो एग्जीक्यूट नहीं हुआ, अब वी वांट टू कंटिन्यू कि भाई ये कल भी लगा रहे, तो उसके लिए चार्ज है? नहीं नहीं नहीं, नहीं कैरी नहीं, ओवर है, carry ट्रेड हो over गया है, तो, ट्रेड हो trade गया over तो, है। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। अगर मेरा कोई अच्छा। ट्रेड हुआ और मैंने आज क्लोज नहीं किया तो 0.02 या 0.04 ऐसा वो काटता है। वो यहाँ पे उसने दिया है ना कौन से स्क्रिप्ट में कितना काट रहा है। अब जैसे देखिए इसमें कोई नहीं है क्योंकि उसी दिन मैंने क्लोज किया है। इसमें 0.06 लगाया दिया है, इसमें 6 लगाया है, इसमें 11 लगाया है। तो ये क्या ब्रोकरेज है क्या? नहीं नहीं, स्वैप चार्जेस बोलते हैं। हाँ, तो आप ब्रोकरेज ही हो गया पोजीशन ना। को स्वैप कर रहे हो नेक्स्ट डे के ब्रोकरेज, लिए। तो ब्रोकरेज ही हो गया ना एक प्रकार से, रोल ओवर नहीं कॉस्ट हो सर, गया ना। ब्रोकरेज तो कमीशन यहाँ आएगा ना सर। अच्छा, नहीं तो ये किसको जा रहा है पैसा? ये स्वैप चार्जेस एक्सचेंज को, इसी को जाएगा ना, रॉ ट्रेडिंग को। किसको?
रॉ ट्रेडिंग जो कंपनी है उसी को जाएगा। हाँ तो दैट मीन्स कि वो ब्रोकरेज चार्ज कर रहा है ना, तो इसका मतलब सर ब्रोकरेज नहीं बोलते हैं, कमीशन वो अलग आता है। कमीशन आपको कितना दो है? चीज है, कमीशन स्वैप कितना है? चार्जेस और कमीशन, दो चीज है। कमीशन कितना है यहाँ पे? कमीशन आपको बड़े अकाउंट में $60 है। $60 मतलब $7 $7 पर ट्रेड? पर ट्रेड। वो तो बहुत ज्यादा हो गया है। सर $7 मतलब कितना हो गया, आपका वैल्यू भी बहुत हो गया ना सर। नहीं नहीं, हमको माइक्रो वाले में करना है तो कितना आएगा कमीशन? 0.07। अच्छा, तो वो वो आप पे तो बहुत कहीं भी कमी लगा है। हुआ नहीं है, आप पे तो हाँ कहीं भी लगा हुआ नहीं है इसके अंदर। तो मैंने सर स्प्रेड पे लिया है ना सर, स्प्रेड पे है तो फिर स्प्रेड पे काम होता है ना, इसमें तब ब्रोकरेज नहीं लगता है। तो ये स्प्रेड पहले से इन लोग एडजस्ट कर लेते हैं उसमें। अगर आप अच्छा, कमीशन दोगे तो स्प्रेड कम हो जाएगा। ये नया कमीशन सिस्टम है। ब्रोकरेज इसमें इनबिल्ट है स्प्रेड में। अच्छा, आपको बोलते हैं जीरो ब्रोकरेज, लेकिन वो स्प्रेड में वो एडजस्टेड रहता है। ये लाइव हमने इंडिया ट्रेडिंग में में भी कभी देखा भी है। कमीशन देके काम करना अच्छा है। हाँ, क्या 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 करके अच्छा है? लाइव ट्रेडिंग में कभी भी कमीशन देके काम करना अच्छा है। तो कितना भी कमीशन के बाद भी वोलेटाइल हो स्वेप जाए। चार्जेस तो लगेगा ही लगेगा। हाँ कमीशन सर, देंगे, स्वेप 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 चार्जेस तो फिर भी लगेगा। स्वैप चार्जेस लगेगा सर, ये उसका रूल है, सब 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 कंपनी का रूल है। जैसे अच्छा, हम हमारे डीमैट से जाता है, हम हाँ, पैसा चार्ज देते हैं ना सर, अच्छा। तो वो वैसे ओ, टाइप है ये। अच्छा, आप जैसे बता रहे हैं कि इंटरनेशनल करेंसी में आप प्रॉफिट कमा रहे हैं हाँ एक सिस्टम अडॉप्ट करके, और हाँ। इंटरनेशनल करेंसी में तो ट्रेड अपने इंडिया से कम 1000 गुना ज्यादा होता होगा, उससे भी ज्यादा ट्रेडिंग होता है। हम्म। ठीक है, तो हाँ तो आप अगर प्रॉफिट कमा रहे हैं तो कोई लॉस कर रहा है? वही है सर कि हम ब्लाइंडली खेलेंगे तो इसमें लॉस होगा। हम परसेंटेज स्ट्रेंथ देखते हैं, नीचे है तो बाई कर सर रहे ये हैं, ऊपर है तो बेच रहे हैं। हाईली, ये हाँ, जितने भी ये करेंसी है ये हाईली लिक्विडिटी है ना हाँ, सर। जहाँ पे हाँ। हाईली लिक्विडिटी है तो सिंपल सी है कि एक लॉस हो रहा होगा, एक प्रॉफिट कर रहा होगा। तो वो नहीं तो फिर चीज लॉस अगर अपने आप को भी तो हो सिस्टम, सकता है ना। हाँ हो सकता है। कौन वो तो सर सर तो जी कह रहे हैं वो मैक्सिमम मैक्सिमम, वो तो सर तो अभी बोले कि 12 डज में मैक्सिमम कितना लॉस हुआ था आपका? $20 हुआ था। हुआ तो नहीं, वो तो $20 हुआ था उसमें, मतलब टेम्पररी आपने एम टू जीत एम, किया था वहां एम टू एम। एम टू एम लॉस हुआ था, एक्चुअल लॉस नहीं किया था। एक्चुअल में पता है ना, ये ट्रेड रिपोर्ट है ना सर, एक भी ट्रेड रिपोर्ट लॉस में नहीं है। तो आप ये फॉलो कर रहे हैं 97% वाला, 99% वाला? 97। अच्छा, 97 के आता है तो खरीदते हैं कोई भी एक करेंसी में 29 में हाँ से? मतलब ये जैसे अपने इंडिया 24 में 4 आवर करेंसी है, इंडिया की 4 है ऊपर वाली, जो हाँ 5 से 8 वाली, यहाँ भी 29 करेंसी में से अपने को जहां भी 99 97 आएगा आप उसको बेचेंगे, और जीरो आएगा तो खरीदेंगे आप, जीरो से 3 2.28 आया तो खरीदेंगे। 2.28 आएगा तो खरीदेंगे इसको। हाँ अच्छा, अब ओके। अगर आप ये देखोगे इसमें कितना डिफरेंस है, सिर्फ 42 है 94 है वो S2 में आने बराबर है। के लिए। नहीं, वो S2 सेट बराबर दिया है। है मैंने, हाँ हाँ, राइट, वो बहुत तो बिल्कुल वॉलीटिलिटी मामूली कम है। है। अगर आप इसको ओवरऑल देखोगे ना तो तीनों में आपको नजदीक नजदीक ही मिलेगा, 5 डेज में भी, और 124 दिन में भी, और 256 दिन में भी, ये सब नजदीक नजदीक ही मिलेंगे। अगर अच्छा, आप यहाँ इसमें पे बताइए। देखेंगे। ठीक है, इसमें भी बताइए, इसमें मतलब आदमी का फंसने के चांसेस क्या है, ये बताइए। फंसने मतलब के कोई चांस नहीं अगर आप देख के काम करेंगे तो। ये अच्छा, लेवल आने के बाद काम करोगे, वो भी आप लिमिट ऑर्डर डालोगे तो फंसने का चांसेस नहीं है। मैंने कितना भी लॉस हो पहले सकता क्रिप्टो में, मैंने भी पहले करेंसी में खेला है, मेरा है? पूरा हाँ, पैसा गया है। हाँ। क्योंकि मैं देखता ही नहीं था, मैं सिर्फ ये देखता था कि यहाँ चार्ट घूम रहा है, जो मन में आया बाई किया, जो मन में आया सेल कर दिया। अब यहाँ अच्छा, परसेंटेज स्ट्रेंथ हमारे पास है तो हम उसका बेनिफिट ले रहे हैं कि हम सर ये एकदम डेमो, लोएस्ट आए तो बाई कर रहे हैं, एकदम हाई गया तो सेल कर रहे हैं। और सर ये सबसे डेमो पहला इसमें अकाउंट, यही है कि हम्म, आप ये पैटर्न डेमो अकाउंट में 3 महीना ट्रैक कर सकते हैं। आपको अच्छा, कॉन्फिडेंस आया तो ही लाइव अकाउंट खोलना है, नहीं तो चैप्टर बंद। ओह, हाँ तो फिर तो कोई चार्जेस ही नहीं है ना। हाँ, नहीं, कोई चार्ज नहीं। अच्छा, हाँ डेमो वही अकाउंट का चीज कोई है चार्ज ये। नहीं है, हाँ? डेमो अकाउंट को कोई चार्ज नहीं है। तो आप वो 4 मंथ देख लीजिए, अगर बट ये है कि इसमें 24 आवर ट्रेडिंग होता है। हाँ तो तो आप 24/7। आप चाहते हैं 24 घंटा हम जगे रहे हैं? अभी वो 3:15 बजे में 3:30 बजे परेशान हो जा रहे हैं, अभी आप बोलेंगे कि रात भर बैठे रहो आप? दिव्या जी, क्या हो रहा है ये? यही तो है इंटरनेशनल, अगर आप जाना चाहते हो तो यही होगा। फिर रात को 11 बजे भी नींद खुल रहा है तो वो आदमी को खोल के देख रहा है, अरे यार क्या भाव हो गया उसका, मेरा जापान का
हमारा कनाडा का क्या रेट चल रहा है वो देखेगा बेचारा। लेकिन इसका एक ब्यूटी system है, होगा। हाँ, अगर आप देखोगे इसका एक ब्यूटी है कि अगर आपको ये दिखता है कि जीबीपी सब बाइंग में आ रहा है, तो हाँ। आप इसके हिसाब से आपका इंडियन करेंसी में भी यहाँ पे बाइंग में आएगा। तो अरे फिर इसका इंडियन वाला बेनिफिट क्यों करेंगे, हम इंडियन वाला काम क्यों करें, हम यही नहीं काम नहीं, करेंगे ना अगर इसके आपको वहां पे साथ। किसी को जीबीपी बाई करना है, तो अच्छा। हमें यहाँ से अगर सब जीबीपी बाइंग में आ रहा है ना, तो हाँ। जीबीपी आईएनआर भी बाइंग मोड में आएगा। बाइंग मोड में आ जाएगा, सही बात है। अगर यूएसडी आ रहा है तो यूएसडी के हिसाब से आएगा, अगर यूरो आ रहा है तो यूरो के हिसाब से आएगा। तो वो एक बेनिफिट मिलता है आपको क्रॉस करेंसी करने का। ये जो वैल्यूज हैं इसमें, ये बुलिश और बियरिश, ये ऑटोमेटिक आ रहा है इसमें? हाँ, ऑटोमेटिक आ रहा है। ये तो इनकी एक्सेल फाइल है ना, उसमें आ रहा है, ये गूगल फाइल है। ओके। इनकी गूगल फाइल ये अपने को शेयर कर रहे हैं, शेयर की ना आपने इन्होंने, तो वो शेयर की हुई है, तो उसमें देखेंगे तो उसमें ऑटोमेटिकली आता है। ये जैसे ही कभी एक प्राइस के नीचे चला जाएगा, ये जो लाइन है, ये कलर यहां से निकल जाएगा, तो वहां से भी वो निकल जाएगा। ओके। अभी आपका देखिए 125 चल रहा है 53, और ये 125 44 है। जैसे ही ये नीचे आ जाएगा तो ये कलर चला जाएगा। ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग किया हुआ है, और यहाँ पे आपको ये दिखा रहा है कि ये कौन से लेवल पे है। सी 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 बी, ये दिखा रहा है आपको। बी का मतलब है सेकंड लेवल पे गया है। यहाँ पे सी है क्योंकि ये फर्स्ट लेवल पे है आपका। इसमें बाई सेल का डिसीजन है वो कैसे है? ये आपका जो R2 के S2 के नीचे है तो बाई करना है, R2 के ऊपर है तो सेल करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है ना ट्रेड बेरिश, ये यहाँ से क्रॉस किया है। अब यहाँ पे 74 आते ही ये यहाँ पे कलर हो जाएगा। तो आपका सेकंड लॉट अगर आपको लॉस में है तो सेकंड लॉट ले सकते हैं, लॉस में नहीं है तो सेकंड लॉट लेने की जरूरत नहीं है। एवरेजिंग करने के लिए। हाँ, एवरेजिंग करने के लिए ना, एवरेजिंग के लिए। छोटा मोटा लॉस है तो करने की जरूरत नहीं है। हाँ। ये देखिए $6 लॉस दिखा रहा है एक ही। एक्चुअली ये गलती से मैंने 2 ऑर्डर डाल दिया एक ही प्राइस पे, इसके लिए मेरे को ये ज्यादा लॉस दिखा रहा है आज। ये मैंने जीबीपी एयूडी दोनों एक ही साथ डाल दिया। एक 6 बजे डाला, एक 9:30 बजे डाला पेंडिंग ऑर्डर में, फिर दोनों ट्रेड हो गया। क्योंकि अभी भी और यहाँ पे 5-6 ऑर्डर्स मैंने डाली है। अब इसमें जो सबसे बड़ा दिक्कत सबको लग रहा है ऑर्डर पंचिंग का और टाइमिंग का, कि हम रात भर कैसे जागेंगे। तो उसका एक सॉल्यूशन है, लेकिन उस सॉल्यूशन में कैसा है कि हम एक कॉपी ट्रेडिंग ऐप बना रहे हैं, जिससे मैं कोई भी ऑर्डर पंच करूंगा तो आपके सिस्टम में भी ऑर्डर चला जाएगा। सेम ऑर्डर आपने जो क्वांटिटी स्पेसिफाई किया है उसके हिसाब से ट्रेड होगा। मैं भले ही मैं 0.01 ले रहा हूं या 1 ले रहा हूं या 0.1 ले रहा हूं, आपने अगर 0.01 रखा है तो आपके अकाउंट में 0.01 ट्रेड होगा, मेरे अकाउंट में 0.1 ट्रेड होगा। तो मैं जब भी ऑर्डर यहां प्लेस करूंगा उसी टाइम आपके ट्रेडिंग अकाउंट में भी ऑर्डर पंच होगा। इसके लिए लेकिन हमें एक वीपीएस की जरूरत है, वो वीपीएस पे वो चलेगा। तो उसके साथ में एक वीपीएस में हम 3 आईडी डाल सकते हैं। तो जनरली वीपीएस का चार्ज है आपका 2250 रुपया पर मंथ। तो अगर हम 3 आईडी डालेंगे तो हमारा एक्सपेंसेस आएगा 750 रुपया पर पर्सन। तो ये चीज अगर आप ऑर्डर प्लेस नहीं करना चाहते हैं तो आप इस फैसिलिटी का भी यूज कर सकते हो। अगर आप अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं तो आपको ये खर्चा नहीं आएगा। इट डिपेंड्स। हाँ, इज दिस पर मंथ? पर मंथ एंड ये वीपीएस चार्जेस है, वीपीएस चार्जेस 2250 है, और उसमें हमारा 3 आईडी चलेगा। करेक्ट। ओके, एंड दिस वन इज फॉर द पुटिंग ऑर्डर्स इनटू द डेमो या डेमो कोड। यहाँ पे मैं जो भी ऑर्डर पंच करूंगा वो वहां पे ऑर्डर पंच होएगा। और जो भी और लाइव अकाउंट में, लाइव अकाउंट है तो भी चलेगा, डेमो अकाउंट है तो भी चलेगा, कोई भी अकाउंट में चलेगा, उसको इंटीग्रेट कर लेंगे। अच्छा। अभी कोई 5 आदमी लाइव कर रहा है, 5 आदमी डेमो कर रहा है,
तो भी वो ऑर्डर्स पंच होंगे। डेमो वाले में डेमो में पंच होंगे, लाइव वाले में लाइव में पंच होंगे। बट वो 3-3 का ग्रुप बनेगा। 3-3 का ग्रुप बनेगा। जब 3 जन बनेंगे तभी हम एक वीपीएस ले सकते हैं। तो इतने सारे वीपीएस लेने पड़ेंगे क्या? मान लो 100 हाँ। आदमी है तो आपको 33 आपको जो है बोले वीपीएस लेने पड़ेंगे। हाँ, क्योंकि ऐसा एक कैसे? एक का कैपेसिटी 3 के ऊपर डालेगा तो मिसमैच होने का चांसेस है। क्योंकि जनरली हम वीपीएस में एक ही चलाते हैं, लेकिन हमने कॉस्ट के हिसाब से रिक्वेस्ट किया तो बोला मैक्सिमम 3 चला सकते हैं। 4 का करो ना, 4 का। 4 का सर अगर प्रॉब्लम आ गया तो फिर वो हाथ ऊपर कर लेगा। अरे तो अपन डेमो डेमो अकाउंट में में तो देख रहे कर हैं ना, सकते हैं। अपन डेमो में देख रहे हैं तो डेमो में 4 का हाँ, चलने डेमो का कर सकते हैं, लेकिन तो बाकी कॉस्टिंग में 500 रिस्क रुपये हो है। जाएगा ना, कॉस्टिंग 500 रुपये हो जाएगा तो थोड़ा रीजनेबल है, ठीक है। मेरे हिसाब से 500 नहीं, 4 का 600 आएगा, 550 600 तक आएगा। क्यों दो 2250 है ना सर। अच्छा, ओके। वहाँ 2250 डिवाइडेड बाय 4 बोले तो 550 आ गया। हाँ 550 थोड़ा सा ज्यादा आया, 560 रुपये आ गया। जीएसटी हो गया, मतलब हाँ, 500 प्लस जीएसटी हो गया। ये क्योंकि ये इसने 3 का अकाउंट का गारंटी दे दिया है, 3 अच्छा, अकाउंट में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ओके। तो मैंने बोला 750 रुपया वो बड़ी बात नहीं है अगर टेस्ट करना है तो। हाँ, क्योंकि अगर आपको $200 का $200 मिलता है तो 750 रुपया तो कुछ नहीं है सर सामने। वो बात तो बराबर है। वो और तो है। यहाँ पे मैंने देखा है कि रिटर्न आ रहा है, ऐसा नहीं कि रिटर्न नहीं आ रहा है। मेरे ये हिसाब कब से अपन 4 वाला चला के देखते हैं, 3-4 मेंबर ज्वाइन कर सकते हैं और लेट अस सी की मतलब कैसा आता है। अगर परफॉर्मेंस अच्छी आ रही है 3 महीने तक तो देन वी कैन कंटिन्यू। दैट इज व्हाट आई विल प्रपोज। सर एक क्वेश्चन है, ये वीपीएस क्या होता है सर? व्हाट इज दिस? वर्चुअल मशीन। ओके ओके, वर्चुअल मशीन, ओके। वर्चुअल तो- प्राइवेट सर्वर। तो सर्वर के ऊपर आपका 3 अकाउंट मैप किया जाएगा। जब Okay. भी यहाँ ऑर्डर पंच करेंगे तो एक रोबो के तरफ से वो तीनों में ऑर्डर पंच हो जाएगा एक साथ। ओके, सो सर एक मास्टर, आपने एक मास्टर रन किया, बोला आपने एक ऑर्डर मास्टर नहीं है, यहाँ पे Say, मैनुअल let's say. पंच करूंगा। या सो सपोज यू हैव डन आपने 3 लॉट का किया, हाँ। लेकिन हम लोग का सिस्टम में एक एक लॉट होगा हाँ, जो या आपने 3 रखा लॉट है ही वो। होगा? अगर मैं एवरेजिंग करता हूं तो अगर आपने एवरेजिंग नहीं दिया है तो आपके यहाँ पे एवरेजिंग नहीं होगा। नहीं, ये क्या बोल रहे हैं कि आपने 3 लोट का ऑर्डर किया है, मैंने तो एक ही क्वांटिटी डाला है, तो मेरा 1 होगा या मेरा भी 3 होगा? एक ही होगा आपका। अच्छा, आपका 3 है तो मेरा 1 है तो 1 हो जाएगा, और मैंने हाँ। अगर 5 दिया तो 5 हो जाएगा। हाँ मैंने अगर बट 5 सर का आप क्वांटिटी डाला तो 5 हो जाएगा। हाँ आप हाँ, चाहे वो आप जो क्वांटिटी सेलेक्ट करोगे वही होएगा। नहीं Okay. सर, ये सर बट आप ऑटोमेटेड जो है कह ना, रहे थे नंबर ऑफ लॉट्स, राइट? ऑर्डर नंबर ऑफ लॉट इज नॉट ऑटोमेटेड सर, प्राइस इज ऑटोमेटेड। ओके, मैं जिस प्राइस पे ऑर्डर डाल रहा हूँ वो ऑटोमेटेड है। तो ये वो कॉन्फ़िगरेशन एक साथ कहाँ पे shoot हो करेंगे हम जाएगा। लोग? सर हाँ? ये कॉन्फ़िगरेशन कहाँ पे करेंगे, कितना लॉट? वो हम पहले से ही डिसाइड करेंगे ना कि हमें Okay, ये लॉट okay. से काम करना है। ओके भाई अपने को 1 लोट सर, से ये काम करना lot- है, 2 लोट से काम करना है, वो पहले डिसाइड करके इनको बता देंगे। अब ओके, देखिए यही तो मैंने हाँ। कहा था आपको कि मेरा अगर $200 है तो मैं 0.01 से ही खेलूंगा। जब तक मेरा $400 नहीं होता है तब तक मैं 0.02 नहीं करूंगा। ये मेरा रूल रहेगा कि जैसे Okay. जैसे ये बढ़े। अब मेरे पास ये है कि मेरे पास बड़ा लॉट जाने के लिए 20 पॉइंट्स है, मतलब मैं 0.1 0.2 का बाद में 0.01 से 0.1 में आएगा। तो मेरे पास बहुत अपॉर्चुनिटी है इसमें काम करने का, मल्टीप्लाई करने का। यहां पे मेरा 10 स्टेप हो गया। अब यहां पे मैं 0.2 से कर दूंगा फिर आगे, तो मेरे पास अपॉर्चुनिटी बहुत है मल्टीप्लाई करने का। धीरे धीरे करके मल्टीप्लाई होगा। पहले तो आप एक से ही करेंगे ना, 0.01 पहले तो एक से ही करेंगे, मैं वही हाँ, कह रहा हूं बात ना, तो धीरे धीरे करके बढ़ाएंगे तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, हम लॉट भी बढ़ा सकते हैं फ्यूचर में, वो प्रॉफिट में बढ़ाएंगे ना। ये $200 हम निकाल लेंगे जो हमने इन्वेस्ट किया है। अच्छा, जो पहले आपने इन्वेस्टमेंट किया वो पहले पैसा अपना वहां से विड्रॉ कर लो, विड्रॉ कर प्रॉफिट लेंगे। निकाल के बाद में जो प्रॉफिट पे खेलते रहो आप। हाँ बराबर है, बराबर। अच्छा, एक चीज बताइए, जैसे आप बता रहे हैं मैनुअल ऑर्डर डालेंगे आप, हाँ। अभी आप कभी छुट्टी पे चले गए या नहीं, आप हम कहीं छुट्टी टूर पे पे जा ही चले नहीं गए, सकते मंडे टू फ्राइडे, फिर जिम्मेदारी है तो। और लेकिन ये तो 24 आवर्स चलता है, तो आप क्या मतलब कब तक नहीं, काम करेंगे? 24 आवर्स देखिए क्या होता है, रात में उतना वॉलेटिलिटी नहीं रहता है, हाँ। आप पेंडिंग ऑर्डर्स डाल के छोड़ सकते हो। अरे हमारा रात और उनका रात तो अलग है ना। नहीं नहीं, हमारा रात आप यहाँ पे भी नाइट में देखोगे ना, कोई ज्यादा मेजर वेरिएशन नहीं आता है। आपका डे में भी ज्यादा वेरिएशन नहीं आता है, वेरिएशन आता है 6 से 2 बजे तक का रात को, उसके बाद वेरिएशन नहीं आता है।
अच्छा, नहीं तो आप ये आप कितने ऑर्डर डालेंगे एक दिन के अंदर, ये बोल मेरे रहा को हूँ मैं। 6 7 8 ऑर्डर ही डालना है ना। अच्छा मेरा $10 आ गया तो मेरा काम खत्म हो गया ना उस दिन का। अच्छा, आपका टारगेट ये है कि $200 के अकाउंट में मेरे को रोज $10 का प्रॉफिट आ जाए, हाँ कहने का मतलब ये है। तो हाँ, अभी जैसे मेरे आज का $10 हो गया है नहीं तो तो इसका मैं मतलब ये हुआ, कि अगर हम डेमो अकाउंट खोलते हैं तो आप उसमें ऑर्डर डाल के जैसे ही $10 का आ जाएगा आप एग्जिट कर जाएंगे आप, हाँ, तो हमको पोजीशन भी क्लोज कर लगेगा कि दूंगा। आपने $10 पे एग्जिट कर दिया है, हाँ तो उस दिन का मेरा प्रॉफिट $10 हो गया, कहने का मतलब। बराबर, अच्छा 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 क्योंकि अच्छा मेरा टारगेट है $200 कमाना महीने का। अच्छा, 20 ट्रेडिंग इंटू 10 यानी कि 200 करके आप एक महीने में $200 फ्री करना चाहते हो आप। हाँ, ओके ओके, समझ गया समझ गया। उसमें फिर अगर मेरे को 13 मिला, 15 मिला, कभी एक दिन 8 ही मिला तो एडजस्ट होते हाँ जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये लीगल सिस्टम है, ये लीगल है, वेदर एनी फेमा प्रॉब्लम जैसे और एनी आपका आरबीआई क्रिप्टो इशू? चल रहा है वैसे ये है। क्या? जैसे क्रिप्टो चल रहा है वैसे ये है। क्रिप्टो भी तो इंडिया में चल रहा है लीगली, मतलब वो जो नहीं नहीं प्रॉब्लम भाई, आएगी, आप आपको अकाउंट आपको में पैसा लेंगे वो $200 आपको टैक्सेबल होगा। भेजना है, आपको $200 ट्रांसफर करना पड़ेगा, कैसे ट्रांसफर करेंगे उनको? आप आपका इसमें से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से कर सकते हैं। फिर उनके पास काफी अलग है, स्क्रिल बोल के अकाउंट है, उससे कर सकते हैं। अच्छा, और अगर विड्रॉ करना हो तो? वहां पे वैसे ही उसका वही सिस्टम से आएगा आपके अकाउंट में, तो वहां अगर से आपने वापस उसको। इंडिया में पैसा आ जाएगा वापस? हाँ हाँ, है? इंडिया में भी आएगा। अगर आपके पास कोई फॉरेन में है तो वहां से भी आप ले सकते नहीं हो। नहीं, मेरे को इंडिया में जैसे वापस चाहिए तो वो पैसा लेगा, वापस, अब मिलेगा ना। अब वो आपका रुपये में कन्वर्ट होकर इंडिया, वो पैसा वापस आ जाएगा? सर हाँ, वो जो ट्रांजैक्शन चार्ज आपका पड़ेगा ना सर? जो चार्जेस है वो या लगेगा ही। हाँ, जो या जो लगेंगे वो बात अलग है, लेकिन पैसा वापस आ भी सकता है ना, मतलब अगर मुझे हाँ विड्रॉ करना या है। हाँ, वो अगर टेस्ट मेरे को करना पड़ेगा। $200 का प्रॉफिट हो गया तो चार्ज भी लगा, $2 तो लगने दो ना, क्या फर्क पड़ता है, पैसा तो आ आ गया ना जाता है अपना सर, आ वापस। जाता है। है? नहीं नहीं सर, आ जाता है अगर ये आप देखिए, इतना पेमेंट मोड है इनका। अच्छा करोगे तो आ जाएगा। इंस्टेंट डिपॉजिट, फास्ट विड्रॉवल, वीजा, मास्टर कार्ड, पेपाल, स्क्रिल और नेटवर्क। विद इन सेकंड है सर, आ जाता है विद इन ए सेकंड। अच्छा, पैसा आ जाता है वापस, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है? हाँ, नहीं नहीं, क्रिप्टो में तो विद इन ए सेकंड आ जाता है। पहले ये इसमें तो यूरो जितना भी करेंसी है पहले तो आता था, अब अभी तो मैंने कभी ट्राई नहीं किया सर, बहुत दिन हो गया, बहुत साल हो गया। बट अच्छा ये अच्छा। है कि क्रिप्टो में तो विद इन ए सेकंड आ जाता है, तो तो आजकल आपका विद इन ए टेक्निकल सेकंड आ एनालिसिस जाता यहाँ है, भी काम ये करेगा टाइम ना, नहीं ये क्या साहू जी? है। अरे सर जी, टेक्निकल तो सबसे ज्यादा करेंसी में बहुत अच्छा काम करता है, अच्छा, बहुत अरे बढ़िया काम करता है। तो सर्विस फिर जो आप भी, पीताम्बर सर जी एक को डेमो पूछिए। अकाउंट खोल लीजिए इनके साथ में, ये ऑर्डर डालेंगे, आप जो अपनी एक्सपर्ट एडवाइस देते रहना, ऐसा कर लेते हैं। अरे क्या सर, जो एक बना आप हुआ भी है एक वो मेंबर बन जाइए बहुत उसके अंदर, है ठीक है? तो आप एडवाइस देते रहना और अच्छा ऑर्डर सर। ये डालते रहेंगे। पीताम्बर सर जी, ये अगर आप किस दिन एब्सेंट रह गए हाँ तो हाँ उसमें क्या करें? सर, मैं बता रहा हूँ ना, मैं एब्सेंट हो ही नहीं सकता हूँ। मैं कोई भी काम मेरा मंडे टू फ्राइडे नहीं Let's- करूंगा। नहीं नहीं, मैं मान लीजिए कि कहीं किसी वजह से एब्सेंट हो गए आप, या हाँ, कहीं भी रिलेशन हो, तो उसका कोई सोल्यूशन है तो तो वो उसमें चीज ले कोई ना लीजिए। कोई मेरा जो जानकार है, दोस्त लोग जो ट्रेड कर हम्म। रहे हैं, उनको बोल दूंगा। जी जी। अच्छा, हाँ मेरे को भी अगर बिल्कुल। ट्रेड करना है, जैसे मैंने डेमो अकाउंट आपसे लिंक करा दिया या लाइव अकाउंट आपसे लिंक करा दिया, तो आई कैन आल्सो ट्रेड इफ आई नहीं वांट? नहीं नहीं अच्छा, फिर मैं ऑर्डर नहीं डाल नहीं, सकता, हाँ? आप पर्सनली सिर्फ नॉर्मल आप ट्रेड करना चाहते हो तो ट्रेड कर सकते हो, कोई इशू हाँ नहीं है। हाँ, तो मैं ऑर्डर डाल सकता हूँ ना? नहीं, अगर आपने इसमें क्लब किया है तो नहीं डाल सकते हो। अच्छा। ओहो। ओहो, अच्छा अच्छा। अगर अच्छा, आप पर्सनली अपना अपने लेवल पे करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। मतलब अपने लेवल पे बेसिकली ही ये मैं डेमो खोल के करूँ तो वो अलग बात है, वो अलग बात है, वो आप कर लेकिन सकते हो, अगर कोई ये प्रॉब्लम नहीं है। आपसे अगर लिंक कर दिया तो देन आई कैन नॉट प्लेस माय ऑर्डर नो, और आई कैन यू नॉट कैन ओनली एग्जिट। वॉच योर ट्रेड्स। अच्छा, वॉच कर अच्छा। सकता हूँ? हाँ, ओके। सर आप बोल रहे हैं कि अगर अगर आप चाहो तो चेंज भी कर सकते हो, ऐसा ना? वो चेंज कर सकते हो। नहीं चाहिए हाँ, कल अगले महीने से मैं खुद करूंगा, वो चेंज कर सकते हो। नहीं नहीं, अच्छा अगले महीने नहीं तो अगले दिन से अगर मेरा क्वांटिटी चेंज हो, अगर करना चाहूँ तो भी कर सकता हूँ ना? हाँ, क्वांटिटी आप जब भी बोलोगे चेंज हो जाएगा ना। वो तो अपने हाथ में है ना, वो तो इनके हाथ में है ना। हाँ, मैं वही चीज बोल रहा हूँ। सर नहीं, अच्छा। जैसे आप अगर आपको लग रहा है कि मेरे को अल्गो नहीं कराना है, मेरे को पर्सनली करना है, वो भी आप कर सकते हैं। तो सर ये सर जो आप जो ये लिंकेज बोल रहे है, हैं कि ये थोड़ा सा लिंकेज के बारे में बताएंगे, कैसे वो लिंक होगा?
ये देखिए कॉपी ट्रेडिंग ऐप बोल के है, ये हमारे ये डेवलप कर रहे हैं, इन्होंने बाकी के लिए डेवलप किया हुआ है, MT4 के लिए डेवलप कर रहे हैं। बाई सैटरडे तक, फ्राइडे सैटरडे तक रेडी हो जाएगा। अच्छा, and this application is yours? Yeah, this is my personal demo account. Okay. So the problem is that अगर मैं चाहूं कि मैंने एक ट्रेड लिया है सबको बताऊं, तो मैं कितना भी बताऊं लेकिन सब ऑर्डर प्लेस नहीं कर पाएंगे। हाँ, वो तो नहीं होता है सर। तो यहां पे है तो ये कॉपी हो जाएगा अपने आप, तो वो इशू नहीं है कि ये ट्रेड नहीं हुआ। तो ये जो कॉपी करने वाला सिस्टम है, ये भी आईसी मार्केट वाले का है या वो आपका? नहीं, ये बाहर थर्ड पार्टी है। तो थर्ड पार्टी है, ओके। हाँ, उसी का अपने को पैसा देना पड़ रहा है ना, साढ़े ये जो VPS के लिए उसी का पैसा देना पड़ता है ना, वही पैसा है उसमें इंक्लूडिंग है, उसका रोबो का चार्जेस आ गया, VPS का चार्जेस आ गया, सब कुछ आ गया उसके अंदर, प्लस ये एल्गो का भी आ गया, मतलब कॉपी हाँ, ट्रेड का भी चार्ज आ गया सर। हाँ, ओके। एक रेट पर अगर 10 ऑर्डर, जरूरी नहीं कि सारे एग्जीक्यूट हो ही। होगा सर, हम लिमिट ऑर्डर डाल रहे हो ना सर। हाँ, तो किसका पहले हो जाएगा किसका बाद में होगा वो है ना। मैं मार्केट नहीं मार रहा हूँ ना सर। चला जाएगा। हाँ सर, किसी का एग्जीक्यूट नहीं होगा फिर वापस रेट दूसरी जगह चला जाएगा। नहीं तो वो चीज है उसमें, देखिए वो जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जब हम डेमो अकाउंट में देखेंगे तभी मालूम पड़ेगा ना सर। नहीं तो डेमो अकाउंट में एक्चुअल ट्रेड थोड़े ना हो रहा है, थोड़ी पता चलेगा उसमें। नहीं पता चलेगा बेसिकली, वो रेट आने के बाद कैसे कर रहा है, क्योंकि वो लाइव मार्केट में ही ट्रेड करते हैं उन लोग। जितना क्वांटिटी ट्रेड होता है उतना ही डेमो में भी ट्रेड हो रहा है। अरे बाबा, लेकिन डेमो वाला क्वांटिटी तो लाइव में नहीं जाता होगा ना। लाइव में एक्चुअल मार्केट में नहीं जाता होगा। हाँ, नहीं, जो इन्होंने इशू उठाया कि हाँ। आपने 100 ऑर्डर डाल दिए, अब 100 में जब 50 तो एग्जीक्यूट हो जाएंगे और 50 एग्जीक्यूट ही नहीं हुए, रेट वहीं से घूम गया। वो देखना पड़ेगा सर, वो हो सकता वो है, हमने वो चेक हो नहीं सकता किया है अभी तक। वो एक्चुअल लाइव मार्केट में ऐसा तो होता ही है ना। हमारे GTT ऑर्डर में ऐसा होता ही है ना कि वो नहीं जाता ऑर्डर कितने का। क्वांटिटी कोई इशू नहीं है यहाँ पे, ये हाईली लिक्विडिटी है यूरो। अच्छा, ये इंडिया से काफी हाईली लिक्विडिटी है। इंडिया से 100 गुना बड़ा मार्केट है वो ये। चीज का इशू नहीं है। अच्छा, बहुत 100 गुना सर, आप जो कह रहे हो 100 टाइम। सर जी इसमें मैं एक चीज बताता हूँ, बड़ा एक लॉट मतलब मेरा 100 माइक्रो लॉट हुआ सर। हाँ, क्वांटिटी का कोई इशू नहीं है। हाँ। इसमें कोई क्वांटिटी का इशू नहीं है। तो सर के साथ ये हमारा जो सिस्टम पे आगे चल रहा है ना, वो एक्चुअल है, ये डेमो अकाउंट एक्चुअल है। क्वांटिटी का कोई इशू नहीं है। हमारा हो सकता है कि या USD INR में इशू नहीं होगा तो यूरो INR में इशू होगा, बट यहाँ पे बिल्कुल इशू नहीं है उस चीज का। अच्छा। Sir, one problem you may face, but that is the spread can be larger when that is why we are some saying that volatile event is there. Like for example, this Ukraine. Yeah. What was 0.1 pips can become 4 pips or 5 pips. That's the only issue. Yeah, but Otherwise, the problem is that yeah. is what I'm saying. My friend is doing a live account. He said that he is not taking spread. He's paying the brokerage. So that problem gets reduced. So, sorry, I didn't get it. If you pay brokerage, there are can two be 0 ways. pips. No, there are 2 ways. Either you go for no commission basis, where it will be traded on the buy and sell. There will be a spread. Yeah. Now 29.26 and 29.27. There is a spread now here. But Correct. when you are paying a commission, that particular account will not have this much spread. Here the brokerage has been included. But there will be some spread. There will be some spread. It can't be 0 spread. No, it will not be 0 spread, but it will not be this much. Okay. So he informed me that because he is trading with big lots, and he is getting approximately $200, $300 profit in one trade, because his multiples is into 100. So if I'm getting $2, he's getting $200. Yeah, but the spread again, the pips varies from currency pair to currency pair. Yeah. The majors will have the least. That is true. That is why it is being marked here yellow. These are the majors. Cross pairs will have always higher spread. Yeah. But how? So is that transparent? Because suddenly some small event happens, the brokers change the spread dynamically. Yeah, not necessarily Ukraine-like situation. Even otherwise. Yeah.
the spreads I've seen many times, it's being very volatile. So that's why I'm asking this question. Yeah, sir. That is why they are saying that when you're doing a trade, live trading account, don't go for spread, go for the commission basis. Then your spread reduces. This is And, what he said. When in case of volatility, when the spread increases, you will lose money. You will lose money more than the brokerage that they are charging you. But how Otherwise, much is the okay. commission? Huh? How much is the commission? For one big lot, it is $7. तो आपके वहां पे हमारा फिनविशा टाइप कोई नहीं है क्या जीरो कमीशन वाला? अभी ये जीरो कमीशन में सर ये स्प्रेड में एडजस्ट कर लेते हैं सर. नहीं जहाँ स्प्रेड भी जीरो है और कमीशन भी जीरो, ऐसा कोई नहीं है. वो नहीं, फिनविशा कोई पूछना पड़ेगा इसके पास इंटरनेशनल मार्केट है क्या? अरे आपके यहाँ एक वो है ना रोबिनहुड करके कोई है ना, रोबिनहुड करके चलता बताते हैं जीरो ब्रोकरेज है, वो क्या है? सर सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है सर, जब हम इंडिया में है, हमें वहां का ब्रोकर कैसा है मालूम नहीं रहता है. रिप्यूटेड रहता है तो हमारा पैसा सेफ रहता है. अरे रोबिनहुड तो सबसे बड़ा है ना सर. बड़ा रहेंगे के फायदा नहीं है ना, तो रिप्यूटेड है क्या है उधर हमें मालूम पड़ना चाहिए ना. Sir, that brings my second question, sir. Reputed मतलब आप बोला. So IC markets, I was looking at their website, not sure when they were founded. That information was not there. Again, how reputed they are. But of course, $200 is not much. But if you go on increasing the lot size or our deposit, it can become a matter of. Normally, sir, I'm not saying that we need to open an account in IC market, sir. Any MT4 platform will run. It is not necessary IC market. You can open an account anywhere in your this particular thing where they are giving you international currencies, and then you can map using MT4 platform. अच्छा. Not necessary कि हम इसमें ही खोलें. नहीं, IC मार्केट में ही खोलना कोई जरूरी नहीं है. अच्छा, लेकिन आपका ऑर्डर कैसे जाएगा फिर? वो MT4 में से जा रहा है ना सर. MT4 को लिंक कर रहे हैं. अच्छा, MT4 को ब्रोकर से लिंक कर रहे हैं. ओके. ये जितने भी इंटरनेशनल का डेमो अकाउंट है, मैक्सिमम आपका MT4 में ही आता है, मतलब ट्रेड होता है बहुत ज्यादा. ये IC मार्केट आप ले लीजिए या दूसरा, मुझे याद नहीं मैंने कौन सा इसमें खोला था. तो वो चीजें, तो जैसे सर ने कहा कि सबसे ज्यादा MT4 प्लेटफॉर्म इंटरनेशनल मार्केट के लिए कॉमन है. That's like a front end actually, right? Yeah, that's more actually like जैसे अपना यहाँ ओडियन है ना, वैसा ये सॉफ्टवेयर है. Anyone can integrate it. अभी जैसा ओडियन आपका निर्मल बैंक दे रहा है, बाकी और ब्रोकर्स दे रहा है, HDFC दे रहा है, ओडियन ही दे रहा है, लेकिन सबका नाम अलग होगा. See, many of the brokers, they have their own trading software. But people, every time you change broker, you have to learn the new trading software. So that is why this MT4 is internationally, it is everybody supports that. And it's more like a front end. So you can, it's one single interface. Once you learn that user interface, much more easier to trade. अपने इंडिया में नहीं चलता है ये? इंडिया में MT4 नहीं चलता? इंडिया में सब ब्रोकर पे चलता है सर. फॉर एग्जांपल, आई हैव अकाउंट इन वायंडा. सो वायंडा में भी चलता है. वायंडा एशिया पैसिफिक. अच्छा. OANDA. Wayanda is a company. They offered. I'm not sure they're offering in India. तो मेरा अकाउंट तो सिंगापुर में है. Likewise, IQ Markets is another reputed company internationally. If you Google IQ, like IQ Markets is a very big. नहीं, हमारा NSE का भी चलता है क्या? NSE का स्टॉक चलता है क्या? NSE का LTC चलता नहीं. ये कमोडिटी के लिए और करेंसी के लिए. So commodities and currencies and indexes. You can trade indexes also. Sorry, there's some noise. So in fact, you can trade indexes also. In fact, even Nifty 50 also is available in these markets. This one. All indexes, all market indexes, like Dow Jones, SPX 500, Nasdaq, UK index, everybody. Okay. Hong Kong, Singapore, सब कुछ मिलता है. इंडेक्स सब कुछ है, करेंसी है, कमोडिटी है. चलिए, और क्वेश्चंस है लोगों के?
So only one question I have, PG, your strategy that is working on majors only, or how does it work on No, the cross all. Because cross pairs All. में volatility तो ज्यादा है. सर मैं अभी तो देखिए मैं अपॉर्चुनिटी के लिए खेल रहा हूँ, 39 स्क्रिप्ट्स है, 29 स्क्रिप्ट्स है, तो मैंने पूरा ले लिया है. वो तो little too many ना. या सी बिकॉज आई नीड 5 ट्रेड्स ए डे. कौन सा लेवल पे आएगा मुझे पता नहीं है ना सर. आउट ऑफ 29 या आउट ऑफ 29 जो भी 5 में आपका वो 0% 1% आ गया, आप ट्रेड कर अभी सकते भी यहाँ पे अगर आप देखोगे कि कितना स्क्रिप्ट्स आ रहा है एक साथ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ही आ रहा है. हाँ वो सारे रखेंगे तभी कुछ हाँ मैंने पहले काफी कम रखा था तो कम ट्रेड कम हो रहा था, तो मैंने अभी सब इंडेक्स सब करेंसीज को ऐड कर दिया है. करेक्ट. मेरे को तो $2 लेना है सर, एक ट्रेड में $2 लेना है. So टेस्टिंग आपका कितना टाइम हुआ है सर अभी? मैं अभी 10 फरवरी से चालू किया है, मेरे को आज तक एक भी दिन लॉस नहीं हुआ है एक भी ट्रेड में. 10th Feb, ओके. बिकॉज पहली बार मैं लॉस कर चुका था, इसके लिए मैं छोटे छोटे $2 में मैं निकल जा रहा हूँ. पहले दिन तो मैं $1 में भी निकला हुआ है, बाद में पता चला नहीं $2 तक हम रुक सकते हैं, तो $2 तक रुका है. ये लास्ट मोमेंट में जब भी क्लोज $10 मेरा पूरा हो गया तो मैं क्लोज कर देता हूँ. अभी जैसे यूक्रेन का प्रॉब्लम आया, यूक्रेन का इशू आया, तो अपना जैसे अपना रुपी काफी गिरा है, तो सिमिलरली आपके सारे करेंसीज में गिरा है अभी ये 3-4 दिन. मेरे को कोई प्रॉब्लम ही नहीं आया, मैं प्रॉफिट में ही निकला है. नहीं आप प्रॉफिट नहीं, वहाँ की करेंसीज में भी सब में इतना वोलेटिलिटी आया है या सिर्फ इंडिया में ही इतना वोलेटिलिटी था? नहीं वोलेटिलिटी तो आया ही था सर, जल्दी प्रॉफिट आ गया था उस दिन. अच्छा, मुझे $2 चाहिए तो जल्दी आ गया तो मैं निकल जाता था तुरंत. तो मोर द वोलेटिलिटी मोर द प्रॉफिट है कहने का मतलब. या जल्दी निकलने मिलता है. हाँ. तो एक्चुअली क्या है ना, इसका बेसिक है, आप उसको कब पता चलेगा कि कब फ्लक्चुएशन होगा. जैसे ही आप यूएस मार्केट शुरू होता है 8 PM में, ठीक है ना, तो इसका क्या है ना, यूरो यूएसडी वो यूरो का बेस है, तो आपको यूरो यूएसडी सबसे ज्यादा फ्लक्चुएशन 8 to 12 या 1 o'clock तक मिलेगा. और जब यूरो खुलता है तभी वो 1-2 बजे के करीब यूरो खुलता है, तभी वो यूरो यूएसडी में फ्लक्चुएशन होता है. उसके बाद नॉर्मल हो जाता है. उसके बाद फिर यूएस मार्केट खुलने के बाद वो चीज है. जैसे इंडियन मार्केट खुलता है तो आपका INR फ्लक्चुएशन होता है 1-2 घंटा. अगर उसमें यूएसडी में कोई चेंजेस नहीं होता है तो फिर वो चुपचाप बैठा रहता है. तो फिर वो इंतजार करता है रात को कैसे होगा क्या नहीं. तब तक हमारा मार्केट तो बंद हो जाता है, बट इंटरनेशनल में USD INR चलता रहता है जो आपका ट्रेडिंग व्यू में दिखाई देता है. ठीक है, तो वहां पे फिर रात को फ्लक्चुएशन होता है. तो वो चीज है, वो मार्केट के ऊपर डिपेंड होता है. तो उस बेसिस पर अगर आपको पता चला कि मुझे यूरो USD में काम करना है, तो वो 99% के आसपास आ गया है, तो आप समझ लो कि अभी फ्लक्चुएशन का टाइम आ गया है, अब मुझे यूएस मार्केट का खुलने का इंतजार करना है. तभी आपको आराम से वो उस टाइम पे समझ में आ जाएगा. तो वो चीज है. मेरे को साहू जी सबसे बढ़िया चीज क्या लग रही है कि अपने को ये 99 जो कॉन्सेप्ट है ना, अगर यहाँ ट्राई करेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, तो फिर अपने को इंडिया वाले मार्केट में भी काम आएगा वो अच्छे से. एटलीस्ट यहाँ पे वो बिल्कुल ट्रू सेंस में काम करता है ना. मतलब इंटरनेशनल करेंसी में मार्केट इतना बड़ा है कि वो इस पे काम करेगा. इंडिया में तो क्या है कि ऑपरेटर घुस जाता है बीच में, तो वहां से अपने को एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो इवन इंडिया मार्केट में भी अपने को अच्छा काम आएगा. नहीं सर, कोई करेंसी में कोई ऑपरेटर नहीं होता है. करेंसी में कोई नहीं, मैं बता रहा हूँ कि करेंसी में नहीं होता है, लेकिन इंडिया का जो इक्विटी मार्केट है वहां अपने को थोड़ा ज्यादा अपने को आ जाएगा ना आइडिया कि भाई 99 पे खरीदना है, 0 पे खरीदना है, 99 पे बेचना है, तो दैट डिसीजन वी विल एबल टू टेक. प्रैक्टिस हो जाएगा अच्छे से, ये बोल रहा हूँ. प्रैक्टिस अच्छा हो जाएगा ना भाई. यहाँ प्रैक्टिस करो और अपने इंडिया मार्केट में उसको यूज करो, और क्या है, अपना इक्विटी मार्केट में वहां यूज करो. अगर आपको लगता है कि रिजल्ट आता है 97 पे 98 में रिजल्ट आ रहा है, तो वो तो इक्विटी में भी काम करेगा ना. सर USD INR is completely different, sir. It doesn't because it is controlled by RBI, so the way it moves is very different from the general international currency pairs, because there's always a string attached to INR pairs. So आप समझ नहीं रहे मैं क्या बोल रहा हूँ. आपने यू आर नॉट गेटिंग माय पॉइंट. मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आपने ये इंटरनेशनल करेंसी पे ये इनका परसेंटेज स्ट्रेंथ वाला फार्मूले लगाए, और अगर आपको वहां रिजल्ट मिल रहा है,
तो इट विल गिव अ कॉन्फिडेंस टू अस फॉर यूजिंग द सेम मेथड इन अवर इक्विटी मार्केट आल्सो। मैं वो बोल रहा हूँ, आज हम इक्विटी मार्केट में कुछ भी खरीदते हैं, कुछ भी बेचते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर वही हम 97, 98 वाले परसेंटेज वाले फार्मूले पे अगर हम काम करेंगे ना, तो इक्विटी का भी अच्छा रिजल्ट देगा। तो ये एक अच्छा अपना डेमो टाइप हो जाएगा कि अपने यहाँ प्रैक्टिस करो, वहां जाके यूज करो। तो वो हिसाब से यही तो कर रहे हैं सर अभी। आई थॉट पिटजी इज डूइंग दैट ओनली। अरे वो कर रहे हैं, लेकिन लोग इसको प्रैक्टिस का कर रहे हैं। प्रॉब्लम ये है, पब्लिक प्रैक्टिस नहीं कर रही है इसको। ये बता तो रहे हैं, जब से ये परसेंटेज निकाला मैं उसी में काम करता हूँ, उसके अलावा दूसरे किसी में काम नहीं करता हूँ। अरे आप तो करते हैं, लेकिन बाकी आपके सारे वो तो करने चाहिए ना, जो आपके हाँ। शिष्य लोग हैं, आपके जितने जो आपके जिनको आपने सिखाया वो लोग क्या कर रहे हैं, वो प्रॉब्लम है। उसको तो डिसिप्लिन चाहिए सर। दैट्स व्हाट इज द प्रॉब्लम। मैंने बोला ना, हमको पेशेंस नहीं है ना। भी चाहिए, डिसिप्लिन। आई एम वन ऑफ दैट। या नहीं, अभी जब ये ट्रेड करेंगे ना, तो अपने को वो अपने आप पेशेंस आ जाएगा यार। ये ट्रेड करेंगे तब अपने को दिखेगा सामने कि हाँ यार ये भी ट्रेड डाला है, 97 पे डाला है, तो एक वो अपने को अच्छा मिलेगा आइडिया। मेरे को ऐसा लग रहा है। सर मैं नहीं बोलूं? लगेगा सर। सर मैं बताऊं, हाँ। मैंने 0% पे IGL, कैडिला हेल्थ और ल्यूपिन लिया है, लेकिन अभी तो MTM बहुत ज्यादा है। अरे वो अभी जैसे HDFC लाइफ है, HDFC लाइफ भी 0 पे चल रहा है, ठीक है ना। सर। अभी प्रॉब्लम ये है कि वो आपके बेचते जा रहे हैं, तो वो HDFC लाइफ बेचारा पिछले 7 दिन से 0 पे चल रहा है। वो प्रॉब्लम हो रहा है। तो लेकिन जैसे ही घूमेगा ना, जैसे ही HDFC लाइफ घूमेगा ना, एकदम से वो 100 रुपए भागेगा। मैं थोड़ा सर 560 का, हेलो सर, मैं 560 का पुट बेचकर बैठा हूँ। अभी MTM बता रहा है। हाँ तो ठीक है, वो भी 1 महीना चिंता मत करो, आ जाएगा वो। जैसे ही आपका LIC का IPO पूरा हो जाएगा ना, ये सब भागेंगे, देखना। ये LIC IPO के चक्कर में ये अपने इंश्योरेंस वाले भी थोड़े नीचे जा रहे हैं, वो एक प्रॉब्लम चल रहा है। सर एक मिनट सर, पहले तो इसको समझिए, पीताम्बर सर जी का जो कंसेप्ट है पहले उसको समझिए। आपने पुट क्यों बेचा? मेरा क्वेश्चन आपको है, आपने पहले तो गलत किए। ये तो मैं आपको बोलूंगा, आपने पहले गलत किए, काम ही गलत किए। जब आप इनका कहना है सर, मैं इनका कहना है, इनका सिस्टम का कहना है कि ये पिरामिडिक बाइंग है, और 0% के आसपास जब आएगा तो आपको पिरामिडिक बाइंग करनी है। तो दैट मीन्स कि आपको पुट ही नहीं बेचना है। पहले तो इस चीज को समझिए। सिस्टम का मतलब, सिस्टम क्या कह रहा है? सिस्टम अगर ये कह रहा है कि यहां से आपको जबरदस्त बाउंस बैक मिलेगा ही, तब आप पुट बेचिए, या तब आपको पूरी लॉट खरीदिए। जब सिस्टम कह रहा है पिरामिडिक बाइंग कीजिए, तो पुट बेचने का कोई मतलब ही नहीं है सर। पहला चीज तो वहीं पे आंसर खत्म सर, क्वेश्चन ही खत्म, आंसर खत्म। तो क्या वो चीजें, तो वो अगर आप, क्योंकि 50% का रिस्क इक्विटी में रहता है, क्या 50% का रिस्क करेंसी में रहेगा? नहीं, क्योंकि उसके ऊपर वो गवर्नर बैठा हुआ है। तो जब गवर्नर बैठा हुआ है तो उस टाइप की फ्लक्चुएशन हमें करेंसी में नहीं मिलेगा। तो पहले तो समझना पड़ेगा कि कहाँ पे कौन सा सिस्टम हमें यूज करना है। आप इसी सिस्टम को लेकर क्रिप्टो में यूज करोगे तो उससे ज्यादा फंसोगे। अगर इसी सिस्टम को लेकर आप करेंसी में यूज करोगे तो 80 to 90% चांसेस है आपका सक्सेस रेशियो मिलेगा। बात समझ में आया सर? साहू जी, मैंने पिरामिड बाइंग भी की है, लेकिन सिर्फ HDFC लाइफ में मैंने सिर्फ अपनी तरफ से ट्राई करने के लिए पुट बेचा है। अच्छा मैं बताऊं, HDFC लाइफ ने, मैंने भी 560 का पुट बेचा हुआ है, ठीक है। लेकिन मैंने क्या किया था, मैंने जब 600 रुपए आया था ना, ये 600 रुपए में पूरा लॉट कैश में बेच दिया था। एक 600 रुपए में लॉट कैश में बेचा, और वो पैसे को मैंने एक जगह इकट्ठा कर लिया, और फिर 560 का मैंने जो है पुट बेचा। तो मैंने कहा यार अगर नीचे आ जाएगा तो मैं डिलीवरी ले लूंगा। वो अभी नीचे आ गया तो आई हैव नो टेंशन। मैंने वो फार्मूला लगाया, मतलब कैश बेच के फिर पुट बेचा मैंने वो किया था। सेम किया हुआ है मेरे पास भी, मेरा भी शॉर्ट पोजीशन चल रहा है इसके अंदर HDFC लाइफ। नहीं आप CSP हो गया ना बेसिकली आपका, तो है क्या? आपका CSP हो गया। हाँ मेरा CSP, हाँ एग्जैक्ट मीनिंग में CSP हो गया कि मैंने पहले कैश में बेचा एक लॉट 600 में बेचा, और उस पैसे को मैं रख के बैठा हुआ हूँ, और 560 की मैंने पुट बेच दिया। तो अभी नीचे आएगा तो मैं डिलीवरी ले लूंगा ये मार्च एंड में। मैं वो हिसाब से चल रहा हूँ।
मैं सब बोलूं एक, वो जो मोहंती सर है ना, हाँ वो बता रहे हैं कि अगर हमारा पुट इन द मनी हो जाए तो हम स्टेगर बाइंग करेंगे। अरे वो मतलब उसमें नहीं, वो मेरे को जमा नहीं। वो आप स्टेगर बाइंग करेंगे और मान लो नीचे नीचे गिरता गया तो आपको डिलीवरी एक और लॉट लेना पड़ेगा ना, तो आपका तो डबल क्वांटिटी हो जाएगा। वो गलत है सिस्टम। वो नहीं, आपने वो स्टेगर बाइंग चालू कर दिया, जैसे आपका इन द मनी हो रहा है और आपने स्टेगर बाइंग चालू कर दिया। अभी वो 560 का अगर मान लो 500 रुपए आ गया तो क्या करेंगे आप? नहीं अभी नहीं सर, मार्च फिर एंडिंग में अगर 500 रुपए आ गया तो क्या HDFC, करोगे आप? हाँ? तो मैं 200 या 300 शेयर लूंगा HDFC लाइफ का। और बाकी का क्या करोगे लॉस का? नहीं, वो तो स्क्वायर अप ही करना हाँ पड़ेगा ना सर। तो आपको वो स्टेगर बाइंग करने की जरूरत क्या है? आप मार्च एंड तक वेट करो और 500 जब आए तो उसमें डिलीवरी ले लेना पूरा, है जो भी करना है। स्टेगर बाइंग अभी क्यों करना है आपको? नहीं अभी नहीं कर रहा हूँ। नहीं नहीं सर नहीं वो जो स्टैगर बाइंग है ना, वो आपको ये परसेंटेज स्ट्रेंथ वाले सिस्टम को देख के करना चाहिए। जब 0% पे आ जाए तो 1100 का लॉट है HDFC लाइफ का, 100 शेयर ही खरीदो, फिर 5% और गिरने दो, फिर 100 बराबर। खरीदो। एक्चुअली वो साला पुट ऐसे बेचना ही करके नहीं चाहिए। मैं तो क्या बोल रहा हूँ, पुट बेचना ही बंद करके और अपना सिर्फ परसेंटेज स्ट्रेंथ पे स्टेगर बाइंग करता रहो, वो ज्यादा पैसा देगा आपको। ये सही है सर। पुट बेचने का ही नहीं, साला पुट में बहुत फंस जाते हैं वो। क्योंकि सर पुट ये बेचने के बाद में जब इनकम नहीं हो जाता है ना, तो वो 6-6 लाख रुपए का आपको जरूरत है आपको डिलीवरी लेने के लिए। बट सर डोंट वरी अबाउट HDFC लाइफ या SBI लाइफ। ये इसलिए अभी सेलिंग हो रहा है क्योंकि जो फंड मैनेजर्स है, जो म्यूचुअल फंड वाले हैं, उन लोग को अपना जो इंश्योरेंस स्टॉक्स पे जो एलोकेशन है, हाँ वो लोग कम कर रहे हैं, इसलिए पूरा नहीं बेच रहे, कम कर रहे हैं, जिससे कि वो LIC को भी सब्सक्राइब कर पाए। राइट वही दैट इज द चक्कर। ओनली रीजन सेलिंग हो रहा है। और आज मैंने एक अच्छा यार ये सिस्टम में बात एनालिस्ट करो, अपन वो तो कभी भी बात कर लेंगे। ये जो सिस्टम बताया इन्होंने पीताम्बरम जी, उस पे कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट्स है? जो इन्होंने चार्जेस बोले उस पे कुछ इशू है तो वो बताइए आप, सो दैट वी कैन टेक मतलब कॉन्शियस डिसीजन कि अपने को करना है नहीं करना है। मेरा सजेशन तो ये था कि अपन एक VPS में 4 अकाउंट कराएं। मेरा खर्चा 500 रुपए आना चाहिए एंड देन लेट अस सी फॉर 2-3 मंथ। अगर उसमें प्रॉफिट जैसे बोल रहे हैं साहब कि आपको $200 पे $200 आ जाएगा, तो देन वी कैन ट्राई विद लाइव आल्सो। 500 रुपीज इज नथिंग, इट इज जस्ट इट्स लर्निंग कॉस्ट। दैट इज व्हाट आई एम फीलिंग इट। इसमें आपका क्या व्यू है, आप बोलिए। या साहू जी आप क्या बोलते हैं? हेलो। हाँ साहू जी बोलिए। हाँ हाँ बोलिए बोलिए। हाँ ठीक है, बट मेरा नहीं कर रहा हूँ, दूसरा सिस्टम अभी चालू है। हाँ। नहीं क्योंकि ये इतना एफर्ट कर रहे हैं, ये अपना ऑर्डर डालेंगे, कॉपी करेंगे, सब करेंगे तो ठीक है यार, उसमें क्या दिक्कत है? वैसे अपने को एक ट्रेड में 20,000 का लॉस हो जाता है तो अपन चुपचाप बैठते ही है ना, तो ठीक है 500 रुपए का और लॉस हुआ और क्या है, ऐसा मानेंगे। नहीं वो लॉस प्रॉफिट की बात नहीं है। हाँ आपको अभी प्रोग्राम में वो ट्रेडिंग का है, ठीक है। तो आपका आवाज नहीं आ रहा ठीक से, आपका आवाज ठीक से नहीं आ रहा है। आपका आवाज ठीक है। अच्छा और कोई? राकेश जी आपका कुछ व्यू है? राकेश विजय। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल कर सकते हैं। 500 रुपए नथिंग। 500 रुपए अपन रिकवर करने के लिए ROTM का निफ्टी का आप 14,000 का भी पुट बेच दोगे तो वो पैसा उधर से रिकवर कर जाते हैं। और सब लोगों के पास जो है मार्जिन भर भर के पड़े हैं, कोई ट्रेड नहीं ले रहा है, भर के लॉसेस भी पड़े हुए लोगों के पास। ठीक बोला सर। नहीं वास्तव में अभी जो मार्केट गिरा हुआ है ना, कोई CSP में फंसा हुआ है, कोई इक्विटी में फंसा हुआ है, कोई फ्यूचर में फंसा हुआ है। HDFC लाइफ जो है वो एक लॉट कैश में 700 रुपए की बाइंग पड़ी हुई है। हाँ 700 की बाइंग की हुई है। मैंने वही 700 वाला कम में बेच के मैंने पुट बेचा था। मेरा भी वही हाल था सर। ऑन दैट HDFC अरे नो HDFC छोड़ो यार, and then I closed. अरे अभी इसकी बात करो यार, anyway. अभी HDFC का बात नहीं करेंगे, we'll discuss about Okay. this. See, I have one question to PG. See this copy paste trading तो बहुत लोग करते हैं दुनिया में। There are so many people who are currency में, particularly in currency, okay, and they are marketing through different social media. So now VPS 3
limitation. See, some of them they have followers in thousands and even lakhs. So ये copy paste trading में ये 3 VPS 3 limitation होगा. I'm just wondering how they are doing, because it is the 3. If you have to do for, let's say if you have 1,000 followers, how will you be able to manage? Because 3 VPS matlab you will keep on multiplying the VPS. Yeah, the I'm just trying to understand what is the. Yeah, the VPS will increase. Is there any better way to do it? No, sir, the VPS will increase, no doubt about it. Sir, can I share my experience, sir? ये जो copy trading होता है ना, तो everyone knows PR Sundar. So I used to have an account with him, and he used to give his own trades on Telegram channel, and there were like 200 plus subscribers on that particular channel. He had multiple channels. तो वहाँ पे वो लोग डालते थे उनके ट्रेड्स, और फिर मैं जो है वो सेम ट्रेड लेने का कोशिश करता था. बट वो करने में मैनुअली जो है वो बहुत ज्यादा इश्यूज आते हैं. स्लिपेजेस जो है वो बहुत ज्यादा रहते हैं, ह्यूज रहते हैं, और मतलब यू लूज लॉट ऑफ मनी देयर. नाउ व्हाट पीट सर इज टेलिंग दैट उनका ये सिस्टम है कि वो अपना ट्रेड डालेंगे. जैसे ही उन्होंने ट्रेड डाला, जो वीपीएस है वो सेम प्राइस के ऊपर आपका जो ट्रेड है वो आपने जो क्वांटिटी स्पेसिफाई किया वो क्वांटिटी को एग्जीक्यूट कर देगा. तो पहली चीज तो ये है कि यहाँ पे आपको स्लिपेजेस नहीं रहेंगे. व्हाट ईच सर इज टेकिंग ट्रेड एट व्हाट प्राइस, यू विल गेट द सेम ट्रेड. आई अंडरस्टैंड ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल उन्होंने 75 रुपीज पे ट्रेड डाला और आपका ट्रेड भी 75 रुपीज पे गया, पर क्योंकि आपका ट्रेड फ्यू माइक्रो सेकेंड्स बाद में गया, आपके और उनके ट्रेड के बीच में 2 लाख का क्वांटिटी आ गया, और हो सकता है प्राइस 1 लाख क्वांटिटी एब्जॉर्ब करके और वहां से घूम गया और आपका ट्रेड नहीं हुआ. व्हाट यू कैन डू, और मे बी पीट सर कैन, आई मीन इफ यू लाइक, देन माय सजेशन दैट व्हाट यू कैन आस्क दैट जो पीट सर का प्राइस वो डाल रहे हैं, सपोज 75 डाल रहे हैं, तो आप अपना कॉन्फ़िगरेशन में ऐसा करा लो कि आपका जो प्राइस है लिमिट ऑर्डर का वो 75.0001 जाए, यानी उनसे 1 बेसिस पॉइंट ऊपर जाए, सो दैट यू मेक श्योर दैट आपका ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ एंड यू आर नॉट लूजिंग मच. नहीं No, राकेश sir, जी, अपने को Rakesh, इंटरेस्ट that is है. that was not my question. ईद के- Rakesh, that was not my question. My question was, I know copy trade, how it works and all that. My question is this limitation of VPS 3. Is there any better way of doing it? Because even in our group, we are 250 people. So 250 people, if let's say everybody wants to subscribe, so many VPS he has to, create and manage. So that is my question. It's more a technical question than how the trade is being done. So वो तो IT expert वाले बता Sir, पाएंगे. the IT basic problem is that even if it is 150 VPS, the trade will be punched at the same time. That is the configuration that they are doing. नहीं, इनका इशू ये है कि वाई एक VPS में 3 ही कर रहे हैं. वाई नॉट 50 आप एक अकाउंट में लिंक कर दें तो वो जो 2200 रुपए का कोर्स है 50 लोगों में शेयर हो गया. दैट इज सर जी वैसा नहीं हो पाएगा ना. इनका उन्होंने IT वाले बोल के उन्होंने ही बोला ना 3 के ऊपर मत रखिए. अगर वैसा है तो 10 है तो वो बोल सकते थे ना. उन्होंने 1 कहा तो मैं बोला ये कॉस्ट में तो कोई नहीं आएगा. तब उन्होंने बोला मैक्सिमम हम 3 एडजस्ट कर सकते हैं. सर इसमें परफॉर्मेंस इशू आ सकता है. अगर परफॉर्मेंस इशू आएगा वीपीएस में तो फिर जो है हो सकता है कोई ट्रेड ना हो, और वो टाइम पर ट्रेड नहीं हुआ तो फिर एक्चुअली वी लूज अवर पर्पस. सर माय ओपिनियन इज दैट कि हम लोग जो है वो यूजुअली will look at, like me myself has also opened account in Finvicia. No offense to people who have opened account in Finvicia, but my thing is that हम लोग ये कॉस्ट तो बचाने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमको हमारा मेजर स्ट्रेस इस चीज पे होना चाहिए कि क्या ये हमारा स्ट्रेटजी काम कर रहा है, क्या हम पैसा बना पा रहे हैं. अगर हम $10 बना पा रहे हैं इस स्ट्रेटजी से, तो अगर मैं उस $10 में से $1 $2 अगर इन सब खर्चों के ऊपर भी खर्च कर देता हूँ या दे देता हूँ, इट डजंट मैटर. You are right. It's not about cost saving, sir. It's not about cost saving. My question again is, sorry, it is understood wrongly. It's not about cost saving. It's about making a better use of efficient use of things. Of course, with the latency and all that, if it works, if the technology permits, whether there's another alternative. Especially if some IT people are there, maybe they will be able to
find a solution. I think like I think the people, IT people in the group can, I mean, if they already have anything else, then they can suggest and Keith sir can integrate that framework in that. अरे यार चंद्रा जी एक बात बोल रहा हूँ, आपको 500 रुपए के अंदर वो ऑर्डर भी डाल रहे हैं, वो एक स्ट्रेटेजी भी यूज कर रहे हैं, और वो सारी अपन इन आदमी को जानते भी हैं। मतलब इट इज नॉट एन अननोन पर्सन कि हम किसी एक इंटरनेट वर्ल्ड में हम किसी आदमी से एक डील कर रहे हैं। वी नो ए पर्सन, वी नो स्ट्रेटेजी, ही इज टेलिंग हिज ट्रेड आल्सो, एंड अपना कॉस्ट कितना आ रहा है 500 रुपीज। यार उसमें क्या है, क्या फर्क पड़ने वाला है? ये मेरे हिसाब से बोल रहा हूँ मैं। अब वो देखिए ना, आप आज आप अगर आपको खुद को अगर मान लो करना है जिसे ट्रेड, तो आप क्या 24 घंटे आप क्या रात भर आप उसको देखेंगे आप बार बार? तो इफ ही इज ऑफरिंग ऑल दी सर्विसेज पुट टुगेदर इन 500 रुपीज इज ओके यार, उसमें क्या है? व्हाट इज देयर? नथिंग, इट्स आई विल से जीरो कॉस्ट। 500 रुपीज ऑलमोस्ट ए जीरो कॉस्ट। दैट इज व्हाट आई एम फीलिंग इट, बिकॉज स्ट्रेटेजी भी वो दे रहे हैं वो। अगर इफ ही इज ना ओनली लाइक जैसे एक पंचर होता है, ये जो पंचिंग करने वाले होते हैं ना, जो अपने ब्रोकर के बैठे रहते हैं, वो अपना दिमाग नहीं लगाता है। आप उसको बोलो 100 खरीदो 100 खरीदा, 100 बेचो 100 बेचा, दैट्स ऑल। ही विल नॉट पुट हिज माइंड, बट हियर पीताम्बरम जी इज यूजिंग हिज माइंड आल्सो, ही इज यूजिंग हिज स्ट्रेटेजी आल्सो, एंड ही इज कॉपिंग हिज ट्रेड। सो उसका भी तो पैसा मानना चाहिए ना अपने को कुछ। तो अज्यूमिंग की चलिए मान लीजिए वीपीएस में मान लो हो सकता है कि आपको वीपीएस का कॉस्ट 300 रुपया, आप ये मान के चलो यार 200 रुपया इनका वो फीस हो गया, ठीक है ना, उसमें क्या फर्क पड़ता है? मतलब मेरे को इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं लग रहा है। दैट इज व्हाट आई फील। More importantly, Okay. Kothari sir, I agree. More importantly, Keith sir is putting his own money as well there. But Chandra ji, and he's using the strategy also for us, na? But Chandra ji, what you are saying is also right. Maybe we can start with this, and then we can keep on looking for better technical options. I understand your point. You are looking. What you are saying is that VPS से better कोई technology है, तो why not to go for that, or at least explore that, and we can check the prices and compare. अरे बाबा, आपने वो ले भी लिया मान लीजिए, तो वहाँ पे स्ट्रेटेजी कौन यूज करेगा? वहाँ पे ट्रेड कौन डालेगा रात भर? That Keith sir has to integrate into this. तो फिर हो गया ना, घूम फिर के अपन Keith sir के पास ही आ गए ना। No sir, I mean it's again a better efficient way of using. Not that we're not against doing it. Like I don't know if it was Rakesh. We can improving upon. Yeah, we can explore other technical options as well in parallel actually. That's I think that's a good suggestion. नहीं, वो वाला अपना ये अपना जो क्या होता है इंडियन करेंसी में नहीं होता क्या? ये सेम जो सिस्टम है आप कॉपी पेस्ट वाला? नहीं, इंडियन MT4 प्लेटफॉर्म में होता है सर। तो वो तो अच्छा, मतलब इंडिया का कोई भी आपका ये USD INR में नहीं हो सकता है? कॉपी ट्रेड ऐसा नहीं है। देखिए, जो ऐप हमारा बना हुआ है, कॉपी ट्रेड होता है हमारे ऐप में भी, लेकिन उसमें इशू दूसरा आता है कि आपका जो USD INR पे आप ट्रेड करने की चाहते हो, दैट सिग्नल हैज टू कम फ्रॉम चार्ट्स। अरे तो वो आप डाल रहे हैं ना, वो तो आप डाल ही रहे हैं, आप ग्रुप में मैसेज डाल रहे हैं, तो वो भी डाल दीजिए। चार्ट में से सिग्नल आना चाहिए। नहीं Keith sir, वो उनका दूसरा वो है। What he is saying is कि आप जो ट्रेड ले रहे हो, क्या उस ट्रेड को हम लोग forget about currency, be it any stock or whatever, तो क्या हम लोग उसको कॉपी कर सकते हैं? What I think is कर सकते हैं। What he has to do is he has to ask his Helgo guy, and आप लोगों को अपना जो है वो क्या कहते हैं सेटअप करना पड़ेगा अकाउंट उनके साथ में, so that के एक पर्टिकुलर स्टॉक या जो भी लिस्ट है उसके अकॉर्डिंग जो वो ट्रेड ले रहे हैं, सेम ट्रेड विल गेट कॉपीड टू योर अकाउंट। So that is possible, but his algo guy has to do work on it. अब जैसे निफ्टी 20 का स्ट्रेटेजी है आपका, तो निफ्टी 20 का स्ट्रेटेजी आप हमारे लिए भी चला दीजिए। आप अपने लिए निफ्टी 20 कर ही रहे हैं ना रामरम जी, तो जो आप ट्रेड ले रहे हैं वो ट्रेड आपने मेंबर के लिए भी ले लीजिए। नहीं सर, वही मैं कह रहा हूँ, यहाँ पे हमारा जब MT4 इंटीग्रेट होता है, वो मेरा MT4 से वो इंटीग्रेशन होता है, और अभी जो सिस्टम चल रहा है एल्गो में, वहां पे सिग्नल के बेस पे काम हो रहा है। दोनों दो चीज है सर। वहां पे उसको सिग्नल चाहिए भाई, वहां पे मैं ऑर्डर डालूंगा तो वो कॉपी पेस्ट नहीं होगा।
सर उसको अगर आप चार्ट से हटा के ओडिन से लिंक कर दें तो वो ओडियन हो पे मेरा जाएगा। चलता नहीं है ना। ओहो, अच्छा। मैं इसीलिए तो XTS टर्मिनल यूज कर रहा हूँ। अब देख लो, अगर आप कर सकते हो तो मतलब वो भी एक अच्छा उसके लिए अपॉर्चुनिटी भी है। कोशिश करेंगे सर, ऐसा नहीं हाँ। बोल रहा हूँ नहीं करेंगे। टीचर वो बेसिकली वो क्या बोल रहे हैं कि आप जो ऑर्डर डाल रहे हो, सपोज आप कोई भी स्टॉक के ऊपर, सपोज रिलायंस इंडस्ट्रीज पे या निफ्टी बीज पे आप जो अपना एक स्ट्रैटेजी चला रहे हो, ठीक है, तो उस स्ट्रैटेजी में आपका ये फंडा है कि आप पिरामिड बाइंग करोगे और इंट्राडे या शॉर्ट टर्म में कोई प्रॉफिट आया तो आप वो बुक करोगे, लेकिन पूरा क्वांटिटी बुक नहीं करते हो, जो प्रॉफिट है उसका निफ्टी बीज खरीद लेते हो अगर पॉसिबल है तो, एंड यू आर ट्राइंग टू एक्यूमुलेट निफ्टी बीज इन 1 ईयर। नाउ व्हाट आई और प्रदीप जी वांट्स टू डू इज कि मुझे अपना भेजा या दिमाग नहीं लगाना है, मुझे क्या करना है, मैं ऐसा सिस्टम चाहता हूँ कि पीयूष जी ने जो इस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी के लिए जो भी ऑर्डर पंच करे, आई एम ओके विद व्हाटएवर प्रॉफिट और लॉस यू आर मेकिंग, आई वुड लाइक टू कॉपी दैट। तो जो ऑर्डर आपने पंच किया वही ऑर्डर मेरे अकाउंट में भी पंच हो जाए, तो उसके लिए आपका जो एल्गो का बंदा है वो ऐसा कॉन्फ़िगरेशन कर सकता है कि प्रदीप जी के या मेरे फिनवेशिया अकाउंट के हम लोग अपना क्रेडेंशियल जो है वो आपका जो भी VPS है वहां पे हम लोग उधर डाल देंगे, और जब आपका ऑर्डर पंच हो, आप मैन्युअली चाहे से कर रहे हो बट एक एल्गो चलता रहे जो आपके अकाउंट पे स्कैन करता रहे कि निफ्टी बीज पे जो भी ऑर्डर जा रहे हैं वो सेम ऑर्डर जो है वो मेरे और प्रदीप जी के अकाउंट में भी चले जाए। उसके लिए हम दूसरा सिस्टम डेवलप कर रहे हैं सर, जिसमें आप जैसे बताया ना फिनवेशिया का, वहां पे सबका ऑर्डर जाएगा, लेकिन उसको टाइम लगेगा, 15-20 दिन लगेगा। हाँ, वही वाला सेम सिस्टम, ठीक है। बट इट विल नॉट बी कि VPS नहीं चाहिए आपको उसमें। हाँ, वो विदाउट VPS चलेगा। विदाउट VPS चल जाएगा। हाँ, तो वो तो फिर आपका USD INR भी चल कॉपी जाएगा। पेस्ट नहीं है, वो रन होगा आपका, जो जैसा मेरा ऑर्डर डाल रहा है वैसे सबका ऑर्डर डाल देगा। तो USD INR भी हो जाएगा, USD INR भी हो जाएगा, USD INR भी हो जाएगा, एवरीथिंग। अभी हम लोग USD INR पे और निफ्टी बीस में इंट्राडे टेस्ट कर रहे हैं, तो सब तीन जगह पे ट्रेड हो रहा है एक साथ। अच्छा, विद डिफरेंट क्वांटिटी, डिफरेंट डिफरेंस एंड डिफरेंट अकाउंट्स। Okay. But it will take some time. Yeah, this is interesting. Yeah. जब तक मेरे को कंफर्मेशन नहीं होता है तब तक मैं कभी किसी को कुछ बोलता नहीं हूं। अभी आप लोगों ने कंफर्म करने के लिए बोलते ना कि जबरदस्ती बुलवा लिया मेरे से, ये काम हो रहा है। मैं तब तक बोलना नहीं चाहता हूं जब तक मैं कंफर्म नहीं होता हूं। आज भी मेरा जो एल्गो का जो कोडर है उसने बोला कि मैं आपको सैटरडे तक आपका ये API का जो MT4 का इंटीग्रेशन करके दूंगा। तब मैंने आप प्रदीप कोठारी जी से बात किया है, तब तक मैंने कोठारी जी को कुछ बोला नहीं था। ये हमने वेबिनार में दिखाया जरूर था, लेकिन सबको मैनुअली डालना था। इन्होंने से बात किया, को श्योर होना चाहिए ये हो सकता है। निफ्टी बीज और USD INR का भी मैं करूंगा, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। Which if you do this, will you be the first one to do this kind of integration? Or No. Many people are doing it. Many people are doing it. Because we tried to go away without a VPS, but that is creating a problem. Integrating your MT4 and then copying it with the other is doing a problem. We thought of avoiding VPS, but we could not get a solution. That is the reason why we have to go to with VPS. लेकिन निफ्टी बीस और USD INR में आपको VPS की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका क्रेडेंशियल्स के हिसाब से आपका ऑर्डर प्लेस्ड होगा। सर अगर आप ये निफ्टी बीज और बाकी मतलब मे बी स्टार्टिंग विद निफ्टी बीज, अगर आप ये ऐसा कॉपी टाइप का अगर इट्स नॉट एक्चुअली कॉपी पेस्ट सर, इट्स नॉट कॉपी पेस्ट। आप जैसे अभी मैं ये नहीं, आप जैसे क्वांटिटी चेंज कर रहे हो, प्राइस भले ही वो रहे, आप क्वांटिटी चेंज कर सकते हो इंडिविजुअली। एब्सोल्युटली। तो वो चीज कर रहे हैं। हाँ, उस तरह का मतलब आई एम सेइंग इट एज कॉपी ट्रेडिंग, मे बी कस्टमाइज्ड फॉर ईच इंडिविजुअल। तो अगर उस तरह का अगर कुछ बन के आ सकता है ना, तो आई थिंक इट विल बी वेरी यूजफुल, बिकॉज देन आई विल नॉट हैव टू
use my brains in trading, and I just have confidence in Keith sir or his particular strategy, and I'll just subscribe to it and I'll just leave it there. And Yeah, we are coming up with, it will take some time, that's all. We will be coming up surely with a solution. Yeah, it will not be, if I understand it correctly, it will not be a copy this thing, but No, it will not be a copy trade. Simultaneous, Yeah. You can give your own condition also. करेक्ट. सो राकेश जी, जैसे आप जैसे प्रोग्रामिंग करते हैं तो उसमें लूप में डाल देंगे ना, एक लूप में एक बार जितने अकाउंट्स के होगा सबके उसका क्वांटिटी और उसका उससे वो डाल देगा. हाँ सर, लूप फायर कर देंगे. टेक्निकली नथिंग इज इम्पॉसिबल. वी कैन डू, मतलब इट इज जस्ट द आइडिया व्हिच हैज वैल्यू. कि हम कोई, जैसे अब ये पिक्चर का परसेंटेज स्ट्रेंथ है तो एक नया यूनिक चीज है, and if that idea works, then technically anything is possible. Whatever you think, that is possible. Yeah, agree. प्रीत सर, एक क्वेश्चन है. हाँ. So ये जो VPS है, अगर हम लोग उससे तो उसमें क्या कॉन्फ़िगरेशन करना है? हम लोग ने IC मार्केट में अकाउंट खोला, डेमो अकाउंट. So आपको क्या देना पड़ेगा कि आप कॉन्फ़िगर करेंगे वो रोबो के साथ? User credentials, that's all. Oh, we have to give you user credentials. Yeah. And one more thing, sir, अगर आपने ऑर्डर पंच किया, at that moment can I place an order? As No. per my understanding, I can't do that, right? No. But can I look at the reports? What's going on? Yeah. We will be giving you the reports on your mobile itself, mobile app. Achha. Whatever order is placed, whatever is the current M2M, what is the profit, everything will be given there. Okay, got it. Achha. Yeah. When I log into my account, can I see my account also? No, sir, एक ही VPS में 3 है तो लॉगिन नहीं कर पाएंगे ना सर. अच्छा, हम लॉगिन नहीं कर पाएंगे फिर उसको? नहीं, वो तो लॉगिन रहेगा ना हमेशा सर. अच्छा, VPS में तो लॉगिन रहेगा ही ना हमेशा. तो उसमें मल्टी लॉगिन अलाउड नहीं है, जैसे हमने जीरोधा में मल्टी लॉगिन अलाउड है? नहीं सर, उसमें नहीं है. एक जगह से लॉगिन करेंगे दूसरा क्लिक करेगा तो दूसरे जगह से क्लोज कर देगा. You can have multiple accounts. Once पहले एक अकाउंट खोल के अगर ये स्ट्रैटेजी अपना सही काम करता है और आपको खुद को भी है चाहिए, तो अपन किसी और फैमिली मेंबर के नाम पे अकाउंट खोल सकते हैं, where you can do all the things manually. या वो चीज है सर, लेकिन अभी क्या है ना, जो सिस्टम अभी जैसे अभी हम कॉस्ट कम करने की कोशिश कर रहे हैं, तभी तो हम 3 VPS ले रहे हैं ना सर, 3 जन को एक ही VPS में. अगर एक VPS है तो सब आदमी अपना अपना ट्रेड देख सकता है, लेकिन फिर वो कॉस्टली हो जाएगा. करेक्ट. हम कॉस्ट कम करने के लिए हम ये कर रहे हैं ना सर. करेक्ट. हमें कॉस्ट भी कम करना है, हमें फैसिलिटी भी सब होगा, तो वो पॉसिबल नहीं है ना. आइदर वी हैव टू एडजस्ट इन द कॉस्ट और वी हैव टू एडजस्ट इन द व्यू दैट वी आर गेटिंग. क्योंकि 3 जन एक साथ लॉग इन करे, एक के बाद एक लॉग आउट होते जाएगा. सर, और एक जो है आपने बोला था माइक्रो और माइक्रो मिनी और मेजर, वो तीनों में it's a placement of order, right? 0.01 or 0.1 or 1, right? Yeah. It's a thing, nothing other than that, right? No, जैसे अभी आप 1 लॉट ले रहे हैं, 10 लॉट ले रहे हैं, 100 लॉट ले रहे हैं. Yeah. उतना ही फर्क है. Yeah, got it. Sure. Thank you. Yeah. So sir, now how to start? I am okay. I am fine to go with this. That's what I'm saying. I can take one VPS when 3 people are ready for it, because my condition is that I cannot open, if one person is ready, I cannot open a VPS, because I will have to pay the charges for all the 2250 for one VPS, and if only one client is running, it will be difficult for me. So if there are 3 clients, then that is what he told me. If you have 3 clients, we can open one VPS. Then next, if it is a 4th client, you have to wait till 5 and 6 are ready. Now, जैसे कोठारी जी ने कहा 4 करना है, तो मेरे को पहले उससे बात करना पड़ेगा, 4 हो सकता है क्या? वो हो सकता है बोलेगा तो फिर 4 का ग्रुप करना पड़ेगा. मेरा सजेशन क्या है कि ये अपना जो ग्रुप है ना, करेंसी पीताम्बरम जी वाला जो ग्रुप है, उसके अंदर अपना अपना इंडिकेशन डाल दो कि भाई आई एम इंटरेस्टेड. तो अगर अपने को वो 4 मेंबर मिल गए तो फिर तो पीताम्बरम जी उनसे बात करके बता देंगे अपने को. पहले तो उनसे मेरे को ये बात करना पड़ेगा कि 4 पॉसिबल है कि नहीं. हाँ, तो ठीक है, तो आप बात कर लो. मीनवाइल अपना ग्रुप के अंदर डाल दो भाई आई एम इंटरेस्टेड ऐसा करके, तो पता चल जाएगा कि 3 लोग इंटरेस्टेड हैं कि 10 लोग इंटरेस्टेड हैं, 20 लोग इंटरेस्टेड, पता नहीं ना भी. बराबर. वो अपने पता चल जाएगा भाई ये इतने लोग इंटरेस्टेड है, देन अकॉर्डिंगली यू कैन डिस्कस. बराबर कर लेना. और क्या है, अभी ऑन द स्पॉट मत बोलिए.
क्या I'm also fine. मैं भी हाँ, तो I want to ग्रुप test में it out. डालिए, Yeah. तो ग्रुप में डालिए डिटेल अपना, तो तो ग्रुप ग्रुप में में डालने डालने से से क्या पता मुझे चल नंबर ऑफ पीपल मालूम पड़ेगा, तो फिर मैं उस हिसाब से उनसे डिस्कस कर सकता हूँ। हाँ, और बाकी लोगों को पता चलेगा कि यार ये गया तो क्यों गया है, तो एटलीस्ट नो थोड़ा एक कॉन्फिडेंस आता है ना कि 4 सर, आदमी मैंने डाल दिया। मैं भी ज्वाइन कर सर जी, मैं ये शेयर स्क्रीन स्टॉप कर दूं क्या, ताकि मेरे को सब दिखाई दे? अभी आदमी लोगों का चेहरा नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, कर दीजिए। वो क्या, नहीं तो छोटे व्यू में दिखता है ना, तो 2-3 जन का ही चेहरा दिखता है। राइट। तो अभी भी उसमें भी लोग चालू करेंगे तब ना दिखेगा आपको। हाँ, वीडियो चालू करेंगे तब ना दिखेगा। सर you should have at least हाँ, क्या मैडम इज ऑलवेज रेडी। I am all for it. She is always ready. She is looking for a person who can work for her. So she is very happy if you take over this work. Not only F&O, you take equity also. You take equity also, you take Nifty piece also, everything she will give it to you. You do for her. सर मैं बोल रहा हूँ ना, आप अपना वो सिस्टम चालू करो कॉपी ट्रेडिंग वाला। अभी पूरा ग्रुप जो है सब आप ही संभालो, फिर आप ही के पास आ जाएगा और हम लोग छुट्टी मनाने जाएंगे। लेकिन सर क्या, जब तक मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं ना, तब तक मैं कभी भी आगे नहीं आऊंगा सर। इसीलिए तो हमको आप पे कॉन्फिडेंस है कि जब तक आप कॉन्फिडेंट नहीं होंगे आप वो ट्रेड नहीं लेंगे। तो दैट्स व्हाई वी वांट टू सब्सक्राइब फॉर कॉपी ट्रेडिंग विद यू। या सर, यस, मैंने तो अपना कंसेंट भेज दिया। सबसे बड़ा जो एडवांटेज है ना कि वी नो यू। आज मैं जैसे टेलीग्राम में इफ आई ज्वाइन विद एनी ग्रुप और आई गो टू इंटरनेट विद एनीबॉडी, आई डोंट हैव अ कॉन्फिडेंस कि साला भाग जाएगा, क्या हो जाएगा। अब आप कहाँ जाने वाले हैं? हम केरला में आपके घर पहुंच जाएंगे। बराबर। कोई प्रॉब्लम होगा तो एक नया हॉलिडे मिलेगा, और एक हॉलिडे मिल जाएगा, हम लोग हॉलिडे मिल जाएगा आपके खर्चे पे, हम हॉलिडे भी मना लेंगे। या तो आप कौन सा सिटी में रहते हैं? मैंने आपसे पूछा नहीं आज तक। आलुवा कितना दूर है आपका, मतलब जो भी एयरपोर्ट से 18 किलोमीटर। कौन सा एयरपोर्ट से? कोचीन एयरपोर्ट। अच्छा, तो यू आर इन कोचीन ओनली बेसिकली दैट मींस। ओह, तो फिर वहां पे एक हॉलिडे प्लान कर देते ना सबके लिए एक कोचीन में। वो तो बढ़िया बैक वाटर वगैरह सब मिलेगा ना वहां पे। हाँ, अभी यहाँ पे क्या है, अभी जब से कोविड आने के बाद में सब टूरिस्ट का बहुत कम हो गया है। हाँ, तो अभी चालू हो जाएगा, एक दो महीने में लगता है वो खत्म हो जाएगा। टूरिस्ट कम है तो ये और भी अच्छी बात है। क्या टूरिस्ट कम है तो और अच्छी बात है। हाँ, और अच्छी बात है। तो वहां पे इनका स्ट्रेटेजी भी सीख लेंगे और अपना वो मतलब हॉलीडे भी हो जाएगा। एंड अपनी यास्मीन जी तो एक्सपर्ट हैं, वो तो हर महीने कहीं ना कहीं जाती है। एवरी 15 डेज बात करो तो आई एम गोइंग टू अहमदाबाद, आई एम गोइंग टू दार्जिलिंग। अभी आप कहाँ जा रही हैं आप? डलहौजी एंड अमृतसर। अमृतसर, बोलिए। एट द एज ऑफ 70 शी इज ट्रेवलिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। अच्छा है ना, अभी थोड़े बहुत साल है तो कर देने का, बाद में तो बाहर ही जाने का है। निफ्टी के साथ में। टाइम टू एंजॉय सर। क्या बोल रहे हैं? No, this is the time to enjoy. या बात तो नहीं वो होना चाहिए, जाने का आपको होना चाहिए ना, इंटरेस्ट भी तो होना चाहिए। Absolutely. वो भी तो है ना, वो भी तो। अभी आप भी तो गए थे ना, आप पूरा मतलब इंडिया टूर करके आए थे। Then you were posting your correct. You traveled all the cities and then all you did na during COVID time. Correct. 1 month road tour. Yes. तो चलो फिर अपना यही है अभी प्रपोज एक्शन प्लान, यही है कि वी विल पुट आवर कंसेंट इन द ग्रुप एंड देन विल सी कि कितने लोग इकट्ठे हो रहे हैं। एंड देन विल डिसाइड। मीनवाइल अगर किसी को जो बोलता है कि साहब कोई अल्टरनेट अगर कोई अच्छा सिस्टम मिल जाता है तो वो देख लीजिए। बट उसमें इशू ये है कि मतलब इनका एक्सपर्टाइज नहीं मिलेगा अपने को। सपोज यू फाइंड अल्टरनेट सिस्टम, एक्सपर्टाइज हमारा एक्सेल तो सबको फ्री है सर। अरे बाबा, एक्सेल फ्री है लेकिन ट्रेड कब करना है वो तो पता है ना। बाजार में दवाई तो सब मिल रही है, डॉक्टर बताएगा नहीं कि कब दवाई खाना है, तब तक फायदा कैसे होगा? ये भी तो है ना प्रॉब्लम। सर यही से शुरू करते हैं ना। ग्रुप में तो बहुत सारे लोगों ने इंटरेस्टेड लिख दिया है। आई जस्ट ऑलरेडी 10 के ज्यादा हो गए सर। अरे वाह, अपने यहाँ पे ना मैंने देखा कि ये जूम मीटिंग के अंदर साइलेंट ऑब्जर्वर्स हैं। मतलब जूम मीटिंग में 3-4 लोग ही बात करते हैं और सब लोग जो है व्हाट्सएप ग्रुप में लिखते हैं। साइलेंट धुरंधर थे सर। हाँ,
आई डोंट नो व्हाई दे डोंट स्पीक अप। अरे बोलिए ना ग्रुप के अंदर, पता तो चले ना, अपने व्यूज बताइए ना। सर आपको पीताम्बरन सर, में अब कैसा चल रहा है वो? सर ये टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा ना? नहीं सर, एक्सिक्यूशन के लिए यही इसीलिए बोल रहा हूँ कि इंटीग्रेशन होने के बाद में पूरे अकाउंट में एक हमारा कॉपी ट्रेड इक्विटी में चलता है, बट हमें प्रॉब्लम एक ही आ रहा है उसमें कि चार्ट में से सिग्नल आएगा तो ही कॉपी ट्रेड होता है। नहीं, टैक्सेशन का पूछ रहे हैं, टैक्सेशन का तो टैक्सेशन का देखिए, टैक्सेशन का रूल जो मेरे को जो पता है, एक मिनट बता देता, मेरे को जो पता है कि अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो आपको टैक्स भरना पड़ेगा, जो भी अपना 30% जो मार्जिन टैक्स अपना आता है जिस स्लैब में के अंदर है। अगर लॉस आ रहा है तो वो सेट ऑफ अलाउड नहीं है, वो क्रिप्टो की तरह। हाँ, क्रिप्टो की तरह है। हाँ, लॉस आपको सेट ऑफ नहीं कर सकते हो। प्रॉफिट अगर आएगा तो यू हैव टू पे द टैक्स एज पर योर जो भी आपका स्लैब है उसके हिसाब से टैक्स आपको देना। सर आई थिंक क्रिप्टो के अंदर स्लैब पे डिपेंडेंट नहीं है, क्रिप्टो में मैंडेटरी 30% देना है प्रॉफिट से। अच्छा, तो इसमें कोई अपन एक एक्सपर्ट सीए से पूछ लेंगे कि भाई ऐसा इसमें कैसा होता है इंटरनेशनल करेंसी में, तो वो बता देगा। पर जहां तक मेरे को आइडिया लग रहा है कि वी हैव टू पे द टैक्स एज पर आवर स्लैब एंड मोस्ट ऑफ अस आर 30% स्लैब ओनली ना, तो यही मान के चलो कि पूरा टैक्स देना पड़ेगा। क्या मोस्ट ऑफ अस आर 30% स्लैब, नहीं तो वो देखेगा भी नहीं इंटरनेशनल को। Yes, 30 is confirmed. So any question on this now? नहीं, इस पर नहीं सर। वो जो फिनवेशिया में आपका चल रहा है वो जो एल्गो, हाउ इज दैट गोइंग? अरे वो दैट्स वर्किंग परफेक्टली है। मतलब इतना मैंने तो इतना इंटीग्रेट कर दिया उसमें, हर चीज इंटीग्रेट कर दिया है कि मेरा एवरेज बाई रेट कितना है, मेरा एवरेज सेल रेट कितना है, क्या ऑर्डर लेना है, सब चीज इंटीग्रेट कर दिया है। उसमें बस एक छोटा सा माइनर इशू रह रहा है कि अभी मैं क्या चाह रहा हूँ कि जैसे ही मेरा कोई ऑर्डर एग्जीक्यूट हो तो उसका एक अपोजिट ऑर्डर और चला जाए उसके साथ साथ में। वो अभी टेस्टिंग में अभी होने वाला है। वो हो जाएगा तो द होल सिस्टम इज परफेक्ट। वो उसको फिर जो है वेबिनार करेंगे। बट राइट नाउ इट्स वर्किंग परफेक्टली फॉर मी। मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, आराम से। जैसे आज बता रहा हूँ मैं, आज मैं अपना और काम कर रहा था और ये पीछे से मेरा निफ्टी 20 खरीद रहा था, निफ्टी 20 बेच भी रहा था। सारे के सारे जो मैंने शेयर्स के सबके रेट लगा रखे वो अपने आप खरीदता रहता, बेचता रहता। तो दैट्स अ वेरी गुड सिस्टम। बट अभी वही जो एक एडिशनल जो चीज मैंने मांगी है तो वो अभी आ जाएगी उसके बाद में, देन विल हैव अ वेबिनार एंड देन विल टेल एवरीवन। बढ़िया राकेश जी, कांग्रेचुलेशंस। बढ़िया बनाया इन्होंने, बहुत बढ़िया बनाया। राकेश जी कुछ बोलना चाहेंगे आप? यस सर, थैंक यू सर। हाँ, मैंने बहुत बढ़िया बनाया और बहुत बढ़िया से काम कर रहा है। मतलब और मेरे लैपटॉप में काम करता है ना, मुझे कोई वीपीएस चाहिए ना, मुझे कोई रोबो चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। आराम से मेरा लैपटॉप में मॉर्निंग में सामान हो चालू कर देता हूँ मैं, 3:30 बजे तक वो जैसे जैसे उसमें ऑर्डर ट्रेड होते हैं मेरे को उसमें आवाज आती है और मेरे टर्मिनल में दिख जाता है, देखो ये ऑर्डर आपका हो गया। मतलब मेरा जो टर्मिनल चल रहा है तो उसमें मेरे को दिखता है कि हाँ ये ट्रेड हो गया, ये क्वांटिटी आ गई। तो आई कैन डू माई ओन ट्रेड आल्सो। अब जैसे इन्होंने पीताम्बरम जी ने क्या बताया कि अगर आपने उनको दे दिया तो यू कैन नॉट ट्रेड देयर। यहाँ पे क्या कि आई कैन ट्रेड इवन माई ट्रेड आल्सो। तो मेरे को उसमें पता चलता है कि ये एल्गो वाला ट्रेड है और ये मेरा मैनुअल वाला ट्रेड है, वो भी पता चल जाता है। तो इट्स एक्सीलेंट फैक्ट, बहुत बढ़िया सिस्टम बनाया, बढ़िया बनाया। राकेश जी, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। एक्चुअली all credit goes to PK. One second, I have to connect to the mobile. मे बी 10-15 डेज में शायद ये लेके आ जाएंगे पूरा कंप्लीट परफेक्ट सिस्टम, तो फिर उसको जो है ये सबके लिए लेके आएंगे। Right. Actually, the whole credit goes to Kothari ji because I have just coded the thing, but the idea is all his. So I mean, hats off to him. ये सब चीजें मेरे दिमाग में थी, लेकिन जैसा अभी कोठारी जी ने अभी 2 दिन पहले एक वो स्क्रीनशॉट डाला था कि इस तरह से हमारा बाइंग और सेलिंग एंड ऑल दैट हैपेंस। तो आई मीन इट्स लाइक सुपर थिंग। आई मीन जो आइडिया है वो पूरा कोठारी जी का है, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। एंड मतलब मैंने जस्ट कोड किया है एंड दिस आइडिया इज फैंटास्टिक। मतलब अभी मेरे को कोई शेयर सेल करना है, हम लोग वेबिनार में लेंगे, बट मेरे को कोई सेल शेयर करना है किसी में, मैं फंसा पाऊं, तो आप वो 2 दिन पहले वाला जो कोठारी जी ने एक्सेल डाला ना, आप उसको देखिए, हाउ फैंटास्टिक इट इज। यू कीप ऑन सेलिंग एंड योर एवरेज प्राइस इज इन बिटवीन जो ऊपर नीचे आते हैं आपके जो चार्ट, ऊपर नीचे जो प्राइसेस मूव होते हैं,
उसके अंदर यू आर गोइंग टू मेक ह्यूज प्रॉफिट, ह्यूज। मतलब आपने अपने मान लीजिए 100 पे बेचा, फिर आपने 105 पे बेचा, फिर 110 पे बेचा, वो वन वे जा रहा है, जाने दीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन वो जो बीच बीच में वापस से बाइंग हो रहा है, दैट इज गोइंग टू गिव यू ह्यूज प्रॉफिट। So the idea of the concept is fantastic, and as I always, that is my belief that the whole credit goes to idea, not the execution. I have just quoted the thing, but the whole idea is from Kothari ji. Fantastic it is. चलिए, थैंक यू। मैंने वो जो शीट शेयर किया था ना, उसको एक बार देखिए आप। उसमें देखिए, मैं एक सिंपल सा बात बोलता हूँ कि आपने जैसे मान लो कोई शेयर 150 में खरीदा, ठीक है, अभी वो शेयर 120 रुपए में आ गया, तो आप क्या करते हैं? वी ऑल वेट एंड वेट, ऐसा ही करते हैं ना, जब तक अपन बोलते हैं यार मेरी बाई प्राइस भी नहीं आएगा, मैं कुछ नहीं करूंगा। तो उसमें जो उस एक्सेल शीट में ये बनाया है कि इवन आप 120 में भी अगर बेचना चालू करेंगे, तब भी आप जब बाहर टोटल क्वांटिटी बेचेंगे तो आपका एवरेज कॉस्ट से ज्यादा रहेगा। दैट इज द कॉन्सेप्ट, और कुछ नहीं है। वो डिसिप्लिन वे में एक डिसिप्लिन क्या, अरे आप पहले से जीटीटी ऑर्डर डाल के छोड़ दो ना सारे के सारे भाई। उस एक्सेल शीट के हिसाब से आप अपने जो है 12 ट्रेड बना लो आप, कि भाई जब वो 120 आया तो मैं इतना बेचूंगा, 125 आया तो इतना बेचूंगा, 130 आया तो इतना बेचूंगा, और वो लेके आप उसमें डाल दीजिए। तो यानी कि आपकी एवरेज कॉस्टिंग आपकी बाई प्राइस से ऊपर हो गई। नाउ अब जैसे जैसे ट्रेड होता रहे, आप उसके नीचे वाला आप फिर खरीदते रहो आप, तो वो आपको इंट्राडे में भी प्रॉफिट मिलते रहेंगे। तो दैट इज द होल कॉन्सेप्ट। अगर आपको आ गया ना, तो आप कोई भी शेयर किसी भी प्राइस पर है, आपने 1000 रुपए का शेयर लिया, अगर 500 रुपए भी हो गया है, तब भी आप जो है उसमें से बाहर निकल सकते हैं आराम से प्रॉफिट में। Even while testing this system, I'm making huge money. Every day I'm doing nothing. जस्ट मैं वो एल्गो रन कर देता हूँ, मेरा जो पोर्टफोलियो के स्टॉक्स हैं जो मेरे पास पड़े हैं, उनके ऊपर मैं बाय और सेल का जो भी प्राइस है वो डिफाइन कर देता हूँ, स्प्रेड डिफाइन कर देता हूँ कि अगर मान लीजिए 50 रुपए का स्टॉक है तो 25 पैसे का स्प्रेड है, यानी 25 पैसे ऊपर बेचेगा, फिर वापस 25 पैसे नीचे खरीदेगा, फिर ऊपर बेचेगा, ऐसा करके। और अगर जैसे आईसीआईसीआई बैंक वगैरह है तो 5 रुपए ऊपर बेचेगा, 5 रुपए नीचे खरीदेगा। मतलब मैं टेस्ट करते करते आई एम मेकिंग 20,000 रुपीज एवरी डे। तो अभी जब ये कंप्लीटली बन जाएगा, तो व्हाट आई हैव प्लान्ड इज दैट आई विल पुट माय एंटायर पोर्टफोलियो ऑन इट, कि ठीक है जो भी मेरे प्रॉफिट के अंदर शेयर्स है या जो मेरी प्राइस है प्रॉफिट की, समझिए आपने आईसीआईसीआई बैंक 700 रुपए में खरीदा हुआ है, और अगर वो 700 के ऊपर चल रहा है तो आप उसका सेल का ऑर्डर लगाते जाइए, 5-5 रुपए ऊपर का अपने आप सिस्टम लगाता जाएगा। तो अगर वो चला भी गया, इट डजंट मैटर, बिकॉज यू आर मेकिंग मनी, और आपका जो मनी अकाउंट में आ गया, जो प्रॉफिट आ गया, वही अपना है, बाकी अनरियलाइज्ड प्रॉफिट एंड लॉस इज नथिंग। तो इको आ रहा है काफी। वो सिस्टम चालू है उनका, इसके लिए राकेश जी आपका एक बंद करो। हाँ, एक बंद, मोबाइल और दोनों चालू है, इसके लिए प्रॉब्लम आ रहा है। हाँ, उसके लिए इको आ रहा था काफी। लेकिन अभी नहीं आ रहा होगा। हाँ, अब नहीं आ रहा, अब ठीक है। तो जस्ट वेट फॉर 10-15 डेज, हो सकता है पूरा लॉन्च कर दें ये। तो उसमें ये जो ऑटोमेटिकली जो अपोजिट ऑर्डर डालना है, तो वो भी आ जाएगा। जैसे कि आपने जैसे 150 में खरीद लिया, तो मैं चाहता हूं कि जैसे ही मेरा ऑर्डर ट्रेड एग्जीक्यूट हो, तो 145 पे वो खरीदने का ऑर्डर अपने आप डाल दे सिस्टम, मेरे को मैनुअली ना डालना पड़े। राइट। तो वो अगर हो गया तो बस फिर क्या है, फिर तो वो पूरा असिस्टेंट आपका काम कर रहा है और आप अपना मजा करो, एंजॉय करो। पूरे फ्लक्चुएशंस का फायदा होगा। अरे बहुत फायदा होता है भाई, क्योंकि यू कैन नॉट ट्रेड 50 स्टॉक एट ए टाइम ना, नहीं हो सकता। और एल्गो तो 50 हो तो हर सेकंड में वो तो चेक कर रहा है, और चेक करके वो एग्जीक्यूट कर रहा है, और उसके साथ साथ में वो अपोजिट ऑर्डर भी डाल दे रहा है। एग्जैक्टली। आज नहीं तो हम क्या करते हैं, जैसे आज हमने कोई शेयर बेचा, तो अपन वेट करते हैं कि शेयर नीचे गिरेगा तो अपन खरीदेंगे। अभी एल्गो क्या करेगा कि वो उसी समय हैंड टू हैंड ऑर्डर डाल देगा कि भाई आपने निफ्टी 20 185 में खरीदा है और 183 में वापस खरीदना है, तो 183 में वो खरीदने का रेट डाल देगा। जैसे ही शेयर बिका आपका, 185 वाला बिका तो 183 में डाल देगा, 187 में बिका तो 185 में डाल देगा। तो आपकी जो है इंट्राडे मूवमेंट की वजह से काफी पैसा आ सकता है उसमें। या मैं निफ्टी 20 में थोड़ा सा जीटीटी से कर रहा हूँ, वो फिर जीटीटी की जरूरत नहीं पड़ेगा। एक्चुअली वो जीटीटी का ही इम्प्रूव वर्जन है, पर जीटीटी में क्या है कि एक ही ऑर्डर जाता है। प्रॉब्लम ये है ना कि वो काउंटर ऑर्डर नहीं लगाता ना, प्रॉब्लम हमको काउंटर ऑर्डर चाहिए हैंड टू हैंड। तो तब हमको वोलेटिलिटी का मजा आएगा। जैसे आज देखिए, आज आपका 178 तक गया था निफ्टी 20 और 178 से 182 आया,
कोई एल्गो ने सारे ट्रेड कर दिए, 178 पे उसने खरीद भी लिया, 182 पे उसने बेच भी दिया, और नहीं तो हमको मैनुअली डालना पड़ता, और मैनुअली में हम लोग कहीं बिजी हैं या हम कोई दूसरा काम कर रहे हैं, तो फिर वो अपॉर्चुनिटी हम लोग मिस कर जाएंगे। अब कल हो सकता है वापस नीचे गिर जाए तो मेरा वो फिर 178 179 में वापस आ जाएगा। तो ये एक असिस्टेंट अपने लिए काम कर रहा है। एग्जैक्टली, बहुत ही अच्छा। जैसे पीताम्बरम जी ने बताया ना कि वो ये ट्रेड करेंगे, तो दैट मीन्स कि आप ये जो 500 या 600 या 700 जो भी दे रहे हैं, ही इज डूइंग ऑल द ट्रेड।